Hello. My voice is clear. आवाज आ रही है मेरी? Yes, Ajaz sir, it is clear. Your voice is Okay. clear. Okay. I will start once Hemant Bari will join the session. Then I will. Thank you. Bye. His area of interests are condition monitoring, acoustics, and tribology. He has completed BE in production engineering from University of Mumbai in 2004. Apart from this, he has also done various certification courses such as Mobius related to vibration analysis, ASNT, BINDT, which is again certification courses related to vibration analysis, etc. Engineer Hemant Bari has more than 14 years experience in predictive maintenance, which is achieved through various condition monitoring techniques. He has published 35 case study papers at various national and international conferences, newsletters, along with invited talk and poster presentation. Further, he has also conducted 52 condition monitoring workshops on basics of vibration with hands-on practice, oil analysis, thermography, and basics of NDT techniques at various IITs and reputed engineering institute in India. As far as his research activity is concerned, Sir is also supervising various PhD and MTech students from Mumbai and Pune University. With this brief introduction, I would like to invite Engineer Hemant Bari sir to deliver his talk. It will be a great opportunity for us to have a person from industry to enlighten us from his talk, and I hope that this will help academia to collaborate with the industry. Thanks, sir. Please continue, sir. Thank you, sir. I'll share my content. Welcome. Just let me know, is it visible, sir? Presently, it's not visible. Now? Sir, it is in progress. Yeah. It is in progress. Yes, it's visible now. Is it visible now? Yes, sir. It's visible. Okay. Okay. So good morning all, and thank you for giving opportunity to deliver a session at this forum. I thank AMU for this and the organizers who are looking after all this since last many months, means more than 5 to 6 months. So in last 3 days, you must have learned, or you must come across the
valuable talks by the dignitaries persons from various IITs, NITs, scientists. Okay, so everyone is means great persons in the field of condition monitoring. So somebody has taken emerging trends, someone has taken sensor selection, then the instrumentation part, then the gearbox analysis, bearing analysis. Then our honorable CMSI chairman Bhujang Rao sir has taken talked about the industry 4.0 scenario. And today Tiwari sir put more light on the rotor dynamics. So these expert talks were so encouraging, and it was very informative for the beginners and who are going to be more in the field of this condition monitoring. So I will not go into the detail what is condition monitoring, because everybody knows what is condition monitoring, and I will focus on today analysis part. So before going to the analysis part, I just want to spend a few minutes on condition monitoring. So condition monitoring, what is the condition monitoring? And I forgot my best friend Shivnath Ram. He has also taken emerging trends and challenges in condition monitoring. So what is condition monitoring? Condition monitoring is simply a doctor's job. कि डॉक्टर हमारी बॉडी के साथ क्या करता है? What he does, he checks various parameter. Okay, he checks your blood pressure, your fever, temperature, pressure, and some more tests, and he comes to the conclusion: yes, you are suffering from this kind of problem. And once he analyzes the all the data, he comes to one solution कि आपको ये problem है. Okay, once the problem is find out, or once the problem is fixed, then the solution is very easy. कि आपको this disease है, उसका ये दवाई available है. आपको वो problem है, that medicine is available. Similarly, in the plant also, you have to take various parameters. You have to collect various parameters from a single machine or every machine, जो भी critical machine है. So you'll take vibration, temperature, pressure, live wall monitoring, thermography, noise, ultrasonic, some process parameters, and all this. Just like a human body has certain limits or defined limits कि आपका शुगर इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. Your pressure should be within this limit, and your these parameters should be within this limit. Similarly, as per the ISO standard, each and every condition monitoring parameter has ISO limit. So if the parameters are within the limit, then your machine is healthy. If any parameter deviates than the defined value, you must consider as a deviation, and you should find out what is wrong with this machine, or what is going to be wrong with this machine, why this value has been deviated. So after finding this analysis of the collected data, you should come to one solution, that this machine requires a motor bearing replacement, this machine requires a misalignment, this machine requires a foundation strengthening, this machine requires some another work. So once you finalize, or once the condition monitoring analyst confirms the deviation, or confirms the fault in the machine, it's very easy for the plant persons or the maintenance team कि मैंने बोला alignment disturbed है, only the mechanical person will go and correct it. हमने condition monitoring analyst ने बोला कि yes, there is a problem in a motor bearing, only the electrical people will work there. And if there is a foundation problem, the civil work team will work there. So who will work on a machine is decided by the condition monitoring analyst. And how the condition monitoring analyst decides? After collecting the data on a regular interval, finding the deviations well in advance, and analysis of that particular data. So what is the science behind that analysis? How he says alignment karna hai, how he says the bearing replace karna hai, how he says the gear iteration is there. The big science is behind that. कि ऐसे ही वो हवा में नहीं बोलते था अलाइनमेंट करना पड़ेगा या फिर बेरिंग. The whole science is behind that. How the analysis goes, how the analysis works behind that decision, I'm going to tell you that today.
I will not say I will teach you today everything because the 2 hours are very less, but I will just guide you. I will just inform you कि किस तरह से industry में analysis होता है and how the maintenance is done. In Industry 4.0, nobody will allow you to go for a maintenance. I will repeat, in Industry 4.0, nobody will allow you to go for a maintenance unless and otherwise you have a valid reason to do this. If you say, sir, 2 साल हो 1 साल हो गया हम alignment कर देते हैं, no, you are not allowed. सर इसका बेरिंग 2 साल हो गया हम लोगों ने बदला नहीं है, बदल देते हैं, no, you are not allowed. सर इसका ऑयल हम लोगों ने 2 साल पहले चेंज किया था, अभी चेंज कर देते हैं, no, you are not allowed. But if you say the vibration level was 4.5 and now 6.5, limit is 7, I should go for alignment because the spectrum says that, or the condition monitoring analyst says that. So what will happen? You have been allowed. Every support will be given by the management. Manpower ho, material ho, time ho, whatever. Machinery ho, available करके देना है, whatever. Everything with support will be provided to you. If you say the acceleration value is 1.5, it increased to 3.6 and the limit is 4, I need a bearing replacement because the frequencies are of bearing damage. What will happen? You have been allowed to do this. If you say the oil parameters have been deviated from this to that, needs replacement to save secondary damages in a machine, what will happen? The management will support you for oil replacement. ऐसे ही मेरा टाइम हो गया इसलिए मैं कर रहा हूँ. This kind of philosophy is not working today, or this is not philosophy for 4.0. If there is a deviation, you go for a maintenance, exact maintenance. So what is condition monitoring? Condition monitoring offers diagnostic information and data for the root cause analysis. Condition monitoring is used as a proactive defect and elimination strategy to drive failure prevention, and the benefits add up with the improved reliability giving the extended meantime failures. If you Google what is the condition monitoring, such kind of statements will come. But simplifying this, what is condition monitoring? It is a complete solution to machinery maintenance by effectively implementing the condition monitoring techniques. कि आपके पास बहुत सारा techniques है, but you should apply relevant techniques. What is happening to your machine? Okay, so effective implementation of all the condition monitoring techniques will lead you to the exact solution of the machinery maintenance if there is any kind of deviation in your machines. So what is a condition-based maintenance in 4.0? A scheme whereby the maintenance, inspection and overhauls of the plant machinery is scheduled on the basis of condition of that plant. And this requires a condition monitoring techniques. And condition monitoring data, whatever you have collected in a running condition, that will guide you कि जब भी मेरा shutdown आएगा, for which machines I should go for a maintenance, for which machines I should go for inspection, and for which machines a complete overall is required. So based on the condition monitoring data, you can plan a condition-based maintenance cycle. So what is the CBM strategy? At our plant, the condition monitoring maintenance strategy is a coordinated condition monitoring techniques is a key maintenance management practice. Means we don't rely on a single condition monitoring parameter. कि नहीं हम लोग वाइब्रेशन पे रिलाई करेंगे, ऑयल पैरामीटर नहीं देखेंगे, टेम्परेचर नहीं देखेंगे, प्रेशर नहीं देखेंगे, नॉइज नहीं देखेंगे. No. We collect all the data. Any deviation in any parameter, we look for a deviation. और जिसमें भी deviation आएगा, we monitor closely, particularly that machine, and we ensure the high plant availability. And critical equipments are monitored more attentively to further improve the maintenance as well as our operational practices. So how the condition-based maintenance cycle works? Periodic monitoring as per the schedule, monitoring or call from the local operator or the control room engineer, and if the measurements are within limit, the cycle completes there only,
And if the measurement exceeds the alarm, we analyze by the close monitoring, we repair as per the schedule and carry out the maintenance, and we adjust the alarm levels. So this is a complete picture of the condition based maintenance cycle. Here the main role is of analysis. So how the analysis is done? What are the important parameters of analysis? We have to see that. So for that, the important analysis parameter, that is a phase, basics of vibration phase. So phase analysis is very important for the support of vibration spectrum analysis. So we will see the first vibration phase, then we go for analysis, and then we go for some kind of some relevant case studies. So what is a phase? Okay. So some definitions or some bullet points are here. Phase is a position of rotating part at any instant of with respect to fixed point. Phase describes relative timing between two signals. Phase is the angle difference between the measured point and the reference point, or the phase is how the machine member is vibrating with respect to other member or the reference point. Means इसमें क्या होता है कि one point is a reference point and another is a moving point. Okay, so with respect to that, what angle I'm getting, that is my phase. In short, the important punchline is phase gives us a vibration direction. So suppose bearing 1 और bearing 2 है, उस बीच में एक coupling है. So how the bearing 1 is vibrating with respect to bearing 2? Are in phase. If the machine 2 points are in phase, then there is no problem in your machine. If there is a 90-degree or 180-degree difference in the two angles, okay, so there is a problem. So how we detect that, we are going to see. So basically phase gives a vibration direction कि किस direction में मेरा machine का point vibrate हो रहा है with respect to other point. Okay, दोनों एक ही phase में vibrate हो रहे हैं, then I don't have an issue. But if there is a difference in direction of the vibration, then the phase angle will differ and that will create a vibration. So a phase study is a collection of phase measurements made on the machine or structure and evaluated to reveal the information about relative motion between the components. In the vibration analysis, phase measured using the absolute or the relative technique. There are two different techniques, both can be used. Okay, so as per the availability of the instrument you have. Okay, so phase measure करने का दो technique है, that is the absolute and relative technique. So we will see one by one. Okay, absolute phase. What is the absolute phase? Absolute phase is measured with one sensor and one tachometer or stroboscope, whatever you have. Okay, so absolute phase is measured with one sensor and one tachometer. Referencing a mark on the rotating shaft. शाफ्ट के ऊपर आपको एक reflective tape लगाना है. And each measurement point, the analyzer calculates the time between the tachometer triggered and the next positive waveform, the peak vibration. Means what? टैकोमीटर नहीं है तो आप स्ट्रोबोस्कोप भी वाइब्रेशन के एनालाइजर से कनेक्ट कर सकते हैं. We have this facility in our plant. So phase measured with one sensor, one stroboscope. Okay, शाफ्ट के ऊपर referencing mark है. Okay, and at each measure point, the analyzer calculates the time between the tachometer trigger and the next positive waveform peak vibration. And this time interval is converted into degrees and displayed as a phase. कि phase जो है वो हमें degrees में या angle की 50 degree phase है, 150 degree phase है, 200 degree phase है. That value you get directly on the analyzer. But analyzer में अंदर क्या होता है? That is I am going to show you in this way. कि फर्स्ट जो है सेंसर से एक टाइम वेव फॉर्म आपने कलेक्ट कर लिया एंड उसी टाइम पे जब भी रिफ्लेक्टिव टेप कट करेगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, व्हाट विल हैपन एट ईच टाइम इट विल ट्रिगर अ टैकोमीटर वेव फॉर्म. सो द वेव फॉर्म highest point by the sensor
and the tachometer trigger, the difference between this is 270 degree for this case. Okay, in one revolution you will see the highest point in the waveform and the tachometer trigger. The difference between these two is 270 degree. Sorry, not the difference. The angle between these two is 270 degree. That's why the phase angle for this point on this bearing at that direction is 270 degrees. Okay, this time interval is converted in degrees. Okay, so absolute phase is required for the rotor balance. Absolute जब भी हम लोग को बैलेंसिंग करना होता है तो that time this kind of phase is mostly required. कि शाफ्ट के ऊपर हम लोग एक रेफरेंसिंग मार्क लगा देंगे, टैकोमीटर से टैग करेंगे और उसी को एनालाइजर को कनेक्ट करेंगे एंड एनालाइजर के अंदर this kind of calculations will be happening and you will get directly the phase angle on your screen. Now, relative phase. If you don't have a tachometer or stroboscope, no problem. But you should have a multi-channel vibration analyzer with 2 or more sensors. Okay. So in this way, relative phase में tachometer या stroboscope का कोई जरूरत नहीं है. Okay. The analyzer must be able to measure cross-channel phase. One single axis sensor serves as a fix and another you have to move it. कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दूसरे बेरिंग का हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टू वर्टिकल एंड एक्सियल टू एक्सियल. So another single axis or triaxial sensor is moved sequentially and you will be calculated the phase. तो ये phase कैसे calculate होता है? You will get a phase on directly on a screen. But behind that, what is happening? This is happening. जो दो waveforms यहाँ पे collect होगा, okay, one single revolution में the sensor 1 का highest point and sensor 2 का highest point. Okay, एक fixed sensor है, एक moving sensor है. Moving sensor means you have to move from horizontal to vertical, vertical to axial, this bearing to that bearing, whatever. And one is a fixed sensor. So highest point on that waveform, highest point on this second sensor, the angle calculated is 270. Okay, for the reference only we have taken. So उस complete waveform में whatever you are getting, that is your phase angle. Okay, so relative phase does not require a tachometer, so the phase can be measured at any frequency. उसमें रेफरेंस टेप नहीं लगाना है आपको, स्ट्रोबोस्कोप नहीं चाहिए, टैकोमीटर नहीं चाहिए, बट मल्टी चैनल वाइब्रेशन ये चाहिए, एनालाइजर चाहिए एंड द 2 sensors are required. So relative phase is a time difference between the waveforms at specific frequency converted to degrees. So this kind of 2 type of phase collection techniques, that is the absolute phase using a stroboscope, relative phase using a 2 sensors. Without stroboscope or tachometer, you will get a phase angle. जिस डायरेक्शन में आपका सेंसर होगा उस डायरेक्शन में आपको उस डायरेक्शन का फेज एंगल मिलेगा. सपोज आपको 2 बेरिंग पे कैलकुलेशन करना है, so you will put a first sensor on first bearing, that is a horizontal direction, vertical direction and axial direction. Then on the second bearing, then you have to compare a phase angle, horizontal to horizontal, vertical to vertical, axial to axial. For the balancing horizontal to vertical on a single bearing, वो भी एक कैलकुलेशन है, वो भी एक एनालिसिस का पार्ट है. I will show you how the phase angle is analyzed. Now you are known that phase is direction, vibration of direction, और relative या absolute से हम लोग ले सकते हैं. And once you have a phase angle data, I will again repeat, phase angle data, how to analyze that. So for the analysis purpose, you have to take the phase data. Okay, then when to measure phase? हर एक equipment को measure करने का नहीं. Then phase has to be measured certain conditions. हम लोग हर रोज फेज हर एक मशीन का नहीं मेजर करते, एज अ रूटीन प्रैक्टिस नहीं है.
जिस मशीन में हाई वाइब्रेशन है, जिस मशीन का हाई वाइब्रेशन में कंफ्यूजन है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, सो फेज इज मेजर्ड इन फॉलोइंग कंडीशंस, दैट इज द मशीन हैविंग मल्टीपल फॉल्ट्स, एक से ज्यादा फॉल्ट्स है कि अलाइनमेंट भी हो सकता है, फाउंडेशन भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। उस केस में आपको फेज एंगल लेना है on that bearings, so that the exact root cause कि नहीं 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 अलाइनमेंट और फाउंडेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये अनबैलेंस का प्रॉब्लम, यू विल कम टू द वन सिंगल पिन पॉइंट, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशंस, इसकी वजह से वहां पे ट्रांसफरेंस हो रहा है, वो हम लोग को ढूंढने के लिए मेनी फॉल्ट सच हैविंग सिमिलर पैटर्न्स, और उस पैटर्न को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि नहीं यहाँ पे ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन लेना है, दैट एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ फेज एनालिसिस। सो वंस यू हैव अ फेज, फिर उसका किस तरह से यूज करना है। सो डिटेक्शन ऑफ सॉफ्ट फुट, सॉफ्ट फुट के जब भी केस होता है कि सॉफ्ट फुट जब भी रहेगा उस मशीन में, देन हाउ यू यूज द फेज एनालिसिस। So you have to take the phase reading on the base plate and the machine foot. Okay, the phase can be used to identify the soft foot while machine is in operation. Okay, machine vertical phase between the foot and the mounting surface, if they are tight, and the phase angle is same between the surfaces. Okay, मीन्स क्या है कि अभी यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो 200 डिग्री एंड 37 डिग्री। ओके, इफ द वर्टिकल फेज डिफरेंस, अभी ये दो एंगल में डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 170 डिग्रीज का है। सो व्हाट द स्टैंडर्ड सेज, if the phase difference between the machine foot and the base plate or the base surface is at around 180 degrees, then you have a soft foot, there is a looseness। यदि वहां पे लूजनेस नहीं होता तो एक एंगल जो 200 आया है वो दूसरा एंगल भी 190, 195, 180 ऐसा आता था। वी हैव टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस, फेज एंगल मिल गया है डेटा कलेक्शन से, अभी एनालिसिस के टाइम पे हम लोग को फेज डिफरेंस लेना है। जिस दो चीजों में या फिर दो फेज एंगल्स में डिफरेंस 180 डिग्री का रहेगा, थोड़ा सा ये टर्म डिफिकल्ट है, आई विल सिंप्लीफाई इन सिंपल लैंग्वेज, आई विल ट्राई फॉर यू। थोड़ा बोर्ड और ये सब होता तो और भी अच्छी तरह समझ में आता था, बट ड्यू टू दिस कोविड इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो सिंपली ध्यान में रखिए, जो भी दो फेज एंगल है उसमें 180 डिग्री का यदि डिफरेंस आता है वर्टिकल में, मोटर का फुट और बेस प्लेट, you have a problem, you have a looseness, you have a soft foot in that particular machine। यदि soft foot नहीं होता तो ये दूसरा एंगल भी 200 है वो 190 होता, या तो फिर वो 37 है ये 50 होता, दोनों का डिफरेंस 180 नहीं होता। सो वही सेंटेंस मैंने लिखा है, if the joint is tight the phase angle is same between the surfaces, if the phase angle is different by more than 20 degrees the foot is loose and the machine frame is cracked or so 180 डिग्री का फेज डिफरेंस यदि आता है देन यू हैव अ प्रॉब्लम। नाउ कॉक्ड बेरिंग ऑन द शाफ्ट, अभी बहुत बार व्हाट हैपेंस लॉट ऑफ टाइम्स, जो भी बेरिंग कॉक्ड है, जो भी बेरिंग में ट्विस्टिंग मोशन है उसमें ही रीडिंग ज्यादा होता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द मशीन देयर इज एब्सोल्यूट एवरीथिंग इज ओके, अलाइनमेंट यू विल फाइंड ओके, एवरीथिंग सब कुछ ठीक रहेगा। बट जो भी बेरिंग में प्रॉब्लम है, कॉक्ड बेरिंग है और ट्विस्टिंग मोशन हो रहा है, दैट बेरिंग विल बी हैविंग अ हाई एक्सियल वाइब्रेशंस। ओके, सो हाई एक्सियल वाइब्रेशंस इंडिकेट्स कॉक्ड होने का चांसेस है। उस टाइम पे what will happen, you have to find out with the help of phase angle, so you have to confirm it। ऐसे ही बोल नहीं सकते कि एक्सेल ज्यादा है मतलब कॉक्ड बेरिंग हो गया है। so for this you have to take the phase angle on periphery of the bearing। so मैं दिखाता हूं यहाँ पे मेरा बॉटल। ओके, सो आपको बेरिंग का पूरा सरफेस दिखना चाहिए। सो 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, sorry 3 o'clock and 9 o'clock,
इसमें एक्सियल डायरेक्शन में इस तरह से सेंसर लगाना है, इस तरह से। ओके, सो सेंसर यू विल बी putting here. I will take a phase reading. 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, and 3 o'clock. If the bearing is cocked, 12 o'clock और 6 o'clock का phase difference 180 डिग्री आएगा. Otherwise, 3 o'clock और 9 o'clock का phase difference 180 डिग्री आएगा. मैं phase difference की बात कर रहा हूं, phase angle की नहीं. phase angle 100 डिग्री, दूसरा phase angle 280 डिग्री. I will get a 180 degree phase difference. Simple calculation. So always I will talk now phase difference. So if, again I will repeat, if the bearing is cocked, then 12 o'clock or 6 o'clock में phase difference 180 degree के आसपास आएगा, और 3 o'clock और 9 o'clock में phase difference 180 डिग्री आएगा, या तो फिर दोनों में भी आ सकता है. ओके, हम लोग को एक केस मिला भी है कि दोनों में 180 डिग्री आ रहा है. So if this situation arise followed by a high axial vibration, the bearing is cocked. Now, confirming unbalance. अभी unbalance suppose है, तो unbalance है तो मुझे एक जगह वेट लगाना है कि दो जगह वेट लगाना है. High vibration followed by 1x, what will happen? कहाँ पे वेट लगाना है? So who will tell you? I will, the phase analysis और the phase जो एंगल है वो हमें बताएगा. सपोज दो बेरिंग्स है. ओके, अगेन आई विल टेक अ बॉटल. सपोज यहाँ पे एक बेरिंग है, यहाँ पे एक बेरिंग है, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल. ओके, इस बेरिंग का हॉरिजॉन्टल और इस बेरिंग का हॉरिजॉन्टल, दोनों का फेज डिफरेंस यदि 180 डिग्री है, देन आई हैव अ कपल अनबैलेंस. मुझे दो जगह वेट लगाना है. Suppose if I have a same bearing horizontal to vertical 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, then I have a static unbalance कि मुझे एक ही जगह पे वेट लगाना है. ओके, सेम बेरिंग पे 90 डिग्री, दो बेरिंग पे 180 डिग्री. जब भी आप पढ़ोगे ये पीपीटी और एक बार, दो तीन बार, मुझे भी ये एक ही दिन में ध्यान नहीं रहा है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. You go inside the phase analysis, things will be easier or easier. Okay, so one day में मैं कुछ बोल के गया हूँ, अरे सर क्या बोल के गए, 90 180 एक्सियल वर्टिकल, ज्यादा सोचना नहीं है. जस्ट पे अटेंशन टुडे. एंड ये रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, तो बार बार आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो. यू विल बी, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कोई इश्यू नहीं है. ओके, देन लूजनेस. अभी कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर है, वहां पे यदि कुछ लूजनेस है, कौन से पार्ट में लूजनेस है, हाउ विल आई फाइंड आउट? सो इस टाइम पे भी फेज एंगल का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट. सो दो, जहां पे भी आप सेंसर लगाओगे, मीन्स फाउंडेशन पे सेंसर लगाओगे, बेस प्लेट पे लगाओगे, कंक्रीट पे लगाओगे, मशीन के प्लेट पे लगाओगे, बेरिंग पेडेस्टल पे लगाओगे, जहां पे भी सॉरी जहां पे भी आप लगाओगे सेंसर, वहां से नेक्स्ट पॉइंट, तो जिस दो में आपको 180 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा, वो दो चीजों में लूजनेस है, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे बेंडिंग है, व्हाटएवर. और जो जहां पे भी फेज एंगल वेल विद इन फेज की मतलब 200 डिग्री का फेज मिला, आगे के पॉइंट पे 210 डिग्री का फेज मिला, दे आर इन फेज. ओके, सो 180 डिग्री का फेज एंगल का डिफरेंस 200 डिग्री मिला और दूसरे पॉइंट पे 20 डिग्री मिला, यू हैव अ फेज डिफरेंस 180 डिग्री. वो दो मीटिंग पार्ट्स में लूजनेस है, ये हम लोग कंफर्म कर सकते. अभी आपको सपोज 170 डिग्री मिला, व्हाट विल यू से, अरे सर ने तो 180 बोला था. तो इतना अनप्रैक्टिकल नहीं रहना है हम लोगों को. रियल लाइफ में 170 भी मिलेगा, 175 भी मिलेगा, 165 भी मिलेगा, 191 भी मिलेगा, 185 भी मिलेगा. इट इज क्लोज टू 180 डिग्री, प्लस माइनस 20 डिग्री चलेगा. एक बार हम लोगों ने पास्ट एक्सपीरियंस से 159 डिग्रीज पे भी
अलाइनमेंट का हम लोगों ने बोला था एंड वी गॉट इट मिसअलाइनमेंट। अलाइनमेंट पे मैं आने ही वाला हूँ। सो कहने का उद्देश्य यही है कि यू फाइंड आउट कि वाइब्रेशन से आपको हाई वाइब्रेशन तो मिलेगा, लेकिन कौन से दो पार्ट में डेविएशन है, कौन से दो पार्ट्स मेटिंग सरफेसेस में लूजनेस है, ये फेज एंगल ही बता पाएगा। ओके, नाउ मिसअलाइनमेंट रियल लाइफ में यदि आप या फिर कंडीशन मॉनिटरिंग एनालिस्ट ने बोल दिया कि अलाइनमेंट डिस्टर्ब है, नोबडी केयर्स इन रियल लाइफ। वो नहीं बताओ हम लोगों को कि पैरेलल मिसअलाइनमेंट है कि एंगुलर मिसअलाइनमेंट, डजंट मैटर्स इन रियल लाइफ। Alignment disturb, the mechanical maintenance team will go and correct the alignment. But for the study purpose कि कौन से टाइप का misalignment हुआ है for this machine, you have to find out. So इसमें क्या है कि हम लोग को basically horizontal and axial phase is very very important. So जब भी दो bearings पे आप phase लोगे, again I will take a bottle, okay, and something, okay, yeah, I will take my mask here. ओके, सो जब भी आपको अलाइनमेंट ढूंढना है, ओके, मिसअलाइनमेंट ढूंढना है, तो व्हाट विल हैपन, यू हैव टू टेक हॉरिजॉन्टल फेज ऑन द बोथ द बेरिंग्स and axial phase on the both the bearings. What is the use of that mask? Make sure you have a coupling in between the two bearings. तभी आप मिसअलाइनमेंट डिटेक्ट कर पाओगे। दो के बीच में कपलिंग नहीं है तो अलाइनमेंट आप फेज से डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that whenever you finding for misalignment case via phase angle, you must ensure उन दोनों के बीच में एक कपलिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ इफ यू फुलफिल दिस, दो बेरिंग उसके बीच में एक कपलिंग, हॉरिजॉन्टल फेज यहाँ पे लिया, हॉरिजॉन्टल फेज यहाँ पे लिया, द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल फेज इज at around 180 degree, then it is a parallel misalignment. If the difference between axial phase is 180 degree, then it is angular misalignment. ओके, सिमिलर थिंग्स मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे भी मैं एक बबल डायग्राम निकाला है। ओके, सो see the motor here, A point and B point, C point and D point, it is a pump. So for finding the misalignment in the particular machine, you must measure a phase on point number B and point number C, horizontal and axial, क्योंकि B और C के बीच में ही कपलिंग है। A and C you should not compare, B and D you should not compare. रीडिंग लेना है तो ले सकते हैं, डजंट मैटर्स, बट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आर पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। ओके, सो इन दो के बीच में हॉरिजॉन्टल फेज यदि 180 डिग्री आता है या तो फिर एक्सियल फेज 180 डिग्री आता है तो अलाइनमेंट डिस्टर्ब है। हॉरिजॉन्टल फेज यदि आता है 180 डिग्री का डिफरेंस, देन इट इज अ पैरेलल मिसअलाइनमेंट। एक्सियल फेज डिफरेंस यदि आता है, इट इज अ एंगुलर मिसअलाइनमेंट। ओके, so you will get a high amplitude 1x 2x 3x, और उस टाइम पे आपको फेज एंगल से आप पता कर सकते हैं कि किस टाइप का अलाइनमेंट डिस्टर्ब है इन दिस वे। ओके, so always measure for a parallel misalignment across the coupling and here also across the coupling. स्पेक्ट्रम सेम है दोनों का, 1x 2x 3x, सिर्फ पैरेलल मिसअलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल या रेडियल एक्शन में डायरेक्शन में रीडिंग ज्यादा रहेगा, एंड इन एंगुलर मिसअलाइनमेंट द एक्सियल रीडिंग ज्यादा रहेगा। ओके, सो दिस इज फॉर कंफर्मेशन। ओके,
नाउ ओडीएस जो बोलते हैं हम लोग कि ऑपरेशनल डिफ्लेक्शन शेप, सो ओडीएस में भी आपको फेज का यूज बहुत सारा है कि किस मशीन में क्या लूजनेस है, कहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन है, कहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटीज है. So all the phase data can be taken with the help of phase angle, and ODS software can make it easily analyze the phase and magnitude data from a large number of test points. और उसका एनालिसिस आप करके मशीन का मोशन का इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो. सो ओडीएस में भी आपको फेज का बहुत सारा यूज है. सो फेज एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार क्या होता है कि वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम से हमें एक पता मतलब पता रहता है कि इस मशीन में कुछ तो एबनॉर्मलिटी है, बट क्या है एग्जैक्टली दैट द फेज गिव्स. ओके, सो सिंपल रखिए थोड़ा सा. व्हाट इज द फेज? फेज इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. ओके, एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का रिलेटिव मोशन है. ओके, एंड कैसे मेजर करते हैं? एक टैकोमीटर या स्ट्रोबोस्कोप, वाइब्रेशन एनालाइजर तो कॉमन ही है दोनों केस में. सो एब्सोल्यूट फेज में आप टैकोमीटर से फेज मेजर कर सकते हैं. एंड इफ यू डोंट हैव अ टैकोमीटर और स्ट्रोबोस्कोप, देन मल्टी चैनल वाइब्रेशन एनालाइजर से आप रिलेटिव फेज भी ले सकते हैं. सो ट्विस्टिंग मोशन में ऊपर नीचे और साइड का फेज ले सकते हो. अनबैलेंस में दो बेरिंग पे हॉरिजॉन्टल में 180 डिग्रीज, और या तो फिर सिंगल बेरिंग पे वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल 90 डिग्रीज का फेज. देन फुट में लूजनेस है, सॉफ्ट फुट है, देन जो बेस प्लेट और मशीन का फुट है उसमें का फेज आपको डिफरेंस लेना है. देन फॉर द मिसअलाइनमेंट केसेस हॉरिजॉन्टल या एक्सियल में 180 डिग्री का ढूंढना है. एंड जहां पे भी कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, जहां पे भी लूजनेस आपको फील हो रहा है या फिर लूजनेस का चांसेस आ रहा है, जो टू मेटिंग सरफेसेस में 180 डिग्री का डिफरेंस आएगा, देयर इज योर लूजनेस और डिफ्लेक्शन और देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर मशीन. ओके, एंड ओडीएस एनालिसिस के लिए भी फेस का यूज बहुत सारा है. सो व्हेनेवर यू आर इन डाउट, व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम से हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस द फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग नेक्स्ट, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम एनालिसिस. तो फेज का इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम का जो एनालिसिस है वो अपनी जगह पे है. सो व्हाट इज वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम एनालिसिस? विल गो फॉर इट. तो वाइब्रेशन डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल मशीन्स वाइब्रेट. एन इंक्रीज इन वाइब्रेशन इंडिकेट स्टेटस चेंज. कुछ तो गड़बड़ है. Each rotating part generates a unique frequency and therefore can be identified. Just like a human body. आपको मलेरिया हुआ तो मलेरिया का ही वायरस अंदर रहेगा आपकी बॉडी के. टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड ही होगा, कोविड होगा तो कोविड ही होगा. ओके, सो जो आप डिटेक्ट करोगे वही फॉल्ट है. ओके, सिमिलरली मशीन्स भी यूनिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, सो देयरफॉर इट कैन बी आइडेंटिफाइड. इसका मैं एक आपको वीडियो भी बताऊंगा. Vibration measurements are taken while the machines are operating. It's obvious thing. Okay. So with this philosophy, we go for analysis. कि मशीन में अनबैलेंस है, मिसअलाइनमेंट है, बेंड शाफ्ट है, लूजनेस है. बेंड शाफ्ट का मैं फेस के बारे में बताना भूल गया कि जैसे मैंने बताया कि ये समझो शाफ्ट है. ओके, बेंड शाफ्ट कैसे ढूंढोगे वाइब्रेशन में या फेस से? फेस के बारे में मैं बोलना बताना भूल गया. इफ यू टेक अ रीडिंग इन एक्चुअल फेज, दिस बेरिंग एंड दिस बेरिंग, बीच में कोई कपलिंग नहीं है, एंड इफ द phase angle is 180 degree difference, then your shaft is bent. बीच में कपलिंग है तो मिसअलाइनमेंट है, बीच में कपलिंग नहीं है
तो शार्प बेंड है। ओके, फिर कोई लूजनेस है, देन द बैड बेरिंग्स और डिटोरेटेड बेरिंग्स। तो प्लांट हैज अ चैलेंज कि क्या किया जाए, अभी रोक दिया जाए, थोड़ी देर बाद रोकना है, सम ऑपरेशन हैज टू बी देयर, कि अलाइनमेंट डिस्टर्ब है, नहीं नहीं इसमें बेरिंग का ही प्रॉब्लम होगा, व्हाट इज देयर। सो इस तरह से थिंकिंग नहीं चलेगा। यू हैव टू सिस्टमैटिकली कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द मशीन्स, व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम्स आर जनरेटिंग, व्हाट इज द करंट वैल्यू, कितने दिनों तक चल सकता है, या टेंटेटिव हम चला सकते हैं या इमीडिएटली बंद कर रहे हैं। दैट ऑल काइंड ऑफ डिसीजंस आर सिस्टमैटिकली टेकन यूजिंग द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसमें फेज का भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो वाइब्रेशन एनालिसिस रिक्वायर्स एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज फॉर एडवांस्ड। कि एम्पलीट्यूड की कितना वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी किस वजह से हाई वाइब्रेशन है, और फेज जब भी फ्रीक्वेंसी का लिमिटेशंस आ जाता है तो उस टाइम पे फेज बताएगा कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो नहीं है, भले ही स्पेक्ट्रम अपने को ऐसा मिल रहा है। सो दीज आर द 3 की पैरामीटर्स। सो सबसे पहले कितना वाइब्रेशन है कैसे पता चलेगा, we'll take a readings in 3 directions, that is a horizontal, vertical and axial. Okay, ये हो जाने के बाद whenever we collect the data we get amplitude and frequency। तो जैसे ही हम लोग सेंसर ट्रांसड्यूसर या जो पिकअप है मशीन पे कनेक्ट करते हैं, we get a waveform। okay, and उस waveform को raw waveform we get, and from the raw waveform we cannot identify all the problems। I will repeat, all the problems हम नहीं identify कर पाएंगे। That's why the FFT FFT calculations are there। So fast Fourier transform converts the waveform into the spectrum and clearly shows you कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हाई वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, और जो भी वाइब्रेशन हाई जनरेट हो रहा है what kind of frequency is there, that part is deteriorated। okay, so basics of analysis is this कि generally जो looseness, unbalance and all these kind of spectrums are there, ये spectrum शुरू होने के बाद ही हम लोग को मिलते हैं। बीच में जो है हम लोग को बेरिंग्स और गियरबॉक्स के जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज जनरेट होते हैं। These high frequencies are generally indicating the deterioration of the bearing or gear wear। okay, हम लोग ये डिटेल में देखने ही वाले हैं। ओके, नाउ तो ये सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे होता है, मैं थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड में जाऊंगा कि सिग्नल प्रोसेसिंग जो है वो कैसे होता है। कि जैसे हम लोगों ने सेंसर मशीन की बॉडी को कनेक्ट किया, वो हम लोग को एक वेवफॉर्म देता है, और वहां से FFT कम्स इन पिक्चर एंड FFT कन्वर्ट्स द वेवफॉर्म इनटू द स्पेक्ट्रम। अभी हम लोग को कैसे पता चलता है कि ये रोटर का है या गियर का है, व्हाट इज दैट। सो whenever the spectrum or whenever the sensor is connected we get a waveform। so in one revolution how many cycles are there, we have to correlate कि ये कितने हैं। okay, if there is a one waveform in one revolution or 1 second whatever, तो we can correlate कि ये अनबैलेंस है या फिर ये रोटर का है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज क्या है, रोटर है। इफ यू गेट सेम टाइम पीरियड, एक रिवोल्यूशन में यदि 4 वेवफॉर्म्स मिल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस मशीन में 4 ऐसी कौन सी चीज है जो उस रिवोल्यूशन से घूम रही है, दैट इज अ फैन ब्लेड। इफ वी गेट सेम रिवोल्यूशन में 12 वेवफॉर्म्स, तो हमें ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज है मेरे मशीन के अंदर जो उस रिवोल्यूशन में 12 बार घूम रही है या फिर 12 है। ओके, सो जब भी मशीन में फॉल्ट जनरेट होगा वही फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। आई विल रिपीट, इफ देर इज अ ब्लेड प्रॉब्लम तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, इफ देर इज अ गियर प्रॉब्लम ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, इफ देर इज अ रोटर अनबैलेंस प्रॉब्लम
then this single frequency will generate. So जब भी मशीन में प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह से जिसका प्रॉब्लम होगा वही जनरेट होगा. आई विल रिपीट, जिसका प्रॉब्लम होगा वही जनरेट होगा, दूसरा चीज जनरेट नहीं होगा. सिमिलरली आवर बॉडी की मशीन में यदि मेरे बॉडी में यदि मुझे मलेरिया का प्रॉब्लम है तो मलेरिया ही का ही वायरस मेरे ब्लड में मिलेगा. टाइफाइड है तो टाइफाइड का ही वायरस मिलेगा, दूसरा कोई चीज नहीं मिलेगा. तो इसका एक सिंपल सा एक 1 मिनट का मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा. जस्ट मुझे कंफर्म कीजिए सर, आवाज आया था अभी? एनीबडी कैन रिप्लाई? Voice of video is not coming. ओके, स्टिल इट इज start. नॉट रिक्वायर्ड, इट्स अ बैकग्राउंड म्यूजिक ओनली. जस्ट ओके, चलेगा. चल, see here, I have paused the video for you. कि if there is a blade problem in your machine, then blade pass frequency will generate in that particular time zone. Okay. If there is a rotor problem, okay, if there is a rotor unbalance problem, a single waveform of that rotor will generate. Now again I have paused this. कि जो भी प्रॉब्लम होगा उसी का वेवफॉर्म जनरेट होगा और उसी का एफएफटी भी यहाँ पे जनरेट होगा. सो अनबैलेंस फ्रॉम जीरो, ये अनबैलेंस का वेवफॉर्म जनरेट होगा और दूसरा वाला जो पिक है वो ब्लेड का है. Coming back to the presentation. So all the frequencies or the waveforms will be generated and it is merged. Okay, रियल लाइफ में बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा. ओके, यही पे एफएफटी का रोल आता है. तो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म सेपरेट्स इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज और वेवफॉर्म्स और डिटेक्ट हाउ मच वाइब्रेशन एट ईच फ्रीक्वेंसी. सो जितना भी वाइब्रेशन होगा उस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का, वो आपको सिंगल मीन्स सपोज अगेन हियर इज द एग्जांपल कि वेवफॉर्म एंड सेकंड, दिस इज द फर्स्ट वेवफॉर्म, दिस इज द सेकंड वेवफॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म जनरेट होगा. कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म को आपको सेपरेट करके आपको इस तरह का एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम मिलेगा. ओके, नाउ एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है डिटेक्शन बाय रूटीन प्रोग्राम ऑफ द मशीन मेजरमेंट्स. ओके, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेंड्स एंड इंडिविजुअल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज, जिसमें भी डेविएशन है कि कल मींस लास्ट मेजरमेंट मेरा 2.5 था, आज ये 4.5 है. आई मस्ट लुक आफ्टर द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज व्हाट आर चेंजिंग. देन रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, जिसमें भी प्रॉब्लम होगा आपको इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है और करेक्ट करना है, करेक्ट डिसीजन लेना है कि बैलेंसिंग करना है, अलाइनमेंट करना है या व्हाटएवर जो कुछ भी लेना है. So in this way, the detection, analysis, reporting and correction. So इनमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये रिपीट दिखाने का यही है कि एम्पलीट्यूड मीन्स कितना है वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी मीन्स किस वजह से, किस पार्ट से जनरेट हुआ है, किस फॉल्ट की वजह से जनरेट हुआ है, एंड फेज, फेज जो है वो आपको दो प्रॉब्लम्स में आपको डिस्टिंग्विश करके देगा कि यहाँ पे लूजनेस नहीं, यहाँ पे अनबैलेंस है, यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं,
bearing cocktail, whatever. Now I will show you now each and every problem. Okay, 1 minute. I will show you each and every problem का spectrum कैसे होता है. What are the some key points of this? Okay, so जब भी आप रीडिंग लोगे, जब भी आप एनालिसिस के लिए बैठोगे, तो उस टाइम पे यू हैव टू कोरिलेट विद दिस. ओके, नाउ डायग्नोस्टिक अनबैलेंस, जब भी अनबैलेंस ज्यादा होगा या अनबैलेंस रोटर हो जाएगा, तो यू विल गेट अ 1x स्पेक्ट्रम. देन हाई रेडियल डायरेक्शन रीडिंग्स, फेज जो है वो स्टेबल में वाइब्रेशन फेज, एंड वाइब्रेशन इंक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ द स्पीड. स्पीड बढ़ा है तो हम लोग का वाइब्रेशन भी बढ़ता है. ओके, नाउ जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक अनबैलेंस यदि है तो आपको वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का मिलेगा. देन इट इज अ स्टैटिक अनबैलेंस. नाउ कपल अनबैलेंस में यही चीज चेंज हो जाता है कि स्पेक्ट्रम तो वही रहता है, लेकिन 180 डिग्री आउट मिलेगा कि इस बेरिंग पे जो फेज एंगल मिलेगा, इस बेरिंग पे जो फेज एंगल मिलेगा, 180 डिग्री का डिफरेंस इज यदि है 1x तो आएगा ही आएगा, लेकिन सिमिलर पैशन में आपको सारा चीज मिलेगा कि हाई रेडियल भी मिलेगा, एक्सल भी मिलेगा. ओके, तो दिस केस इज अ कपल अनबैलेंस. मतलब मुझे दो जगह पे वेट लगाना है 180 डिग्री. ठीक है, दिस इज अ करेक्शन वेट हियर. सो स्टैटिक अनबैलेंस में 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, कपल अनबैलेंस में 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल या एक्सल टू एक्सल, जो कुछ भी है. सो स्पेक्ट्रम विल बी एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ 1x. 1x का मतलब क्या है कि रनिंग स्पीड ऑफ द मशीन. मैं 1x बोला मतलब जो भी मशीन का स्पीड है, 1000 है, 2000 है, 1500 है, 3000 है, 5000 है, डजंट मैटर्स. I will call it as a 1x, means x is the running speed of the particular machine. Now, overhung rotor unbalance. Overhung rotor में क्या होगा कि आपको जो है फेज फेज का रीडिंग जो है वो अनस्टेबल मिलेगा. ओके, सॉरी, एक्चुअल रीडिंग्स टू बी टेन्ड इन फेज. एक्चुअल जो फेज है वो आपको फेज में मिलेगा. मतलब एक्चुअल फेज का रीडिंग जो है वो 180 या 190 जो है वैसा मिलेगा. 180, 190 या फिर जो कुछ भी है 150, 160 मीन्स क्लोज टू द बोथ वैल्यूज. उनमें कोई डिफरेंस नहीं ज्यादा मिलेगा. और हॉरिजॉन्टल फेज जो है वो बहुत ही अनस्टेडी मिलेगा. सच काइंड ऑफ रोटर्स में एक्सियल और रेडियल रीडिंग्स बहुत ज्यादा रहेगा. फॉर दिस overhung rotor unbalance, you have to correct the unbalance in many planes. Okay, एक से ज्यादा जगह पे आपको वेट लगाना पड़ सकता है. तो तीनों डिफरेंस देखिए, पहले में 90 डिग्री का था, एक में 180 का था. यहाँ पे एक्सियल और रेडियल हाई है और फेज का रीडिंग आपको कोई हेल्प नहीं करेगा. मिसअलाइनमेंट. मिसअलाइनमेंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि 1x, 2x, 3x, 4x तक आपको मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कपलिंग. कभी कभी 1x बहुत बड़ा मिल सकता है या 2x जो है वो छोटा मिल सकता है. कभी कभी 2x नहीं भी मिलता है, 3x बड़ा मिलता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कपलिंग. ओके, it depends on the type of coupling, type of मतलब distance of the shaft and all these things. हमारे एफडी फैन और पीए फैन में अनबैलेंस यदि हो जाता है तो हम लोग को 1x ही मिलता है ड्यू टू द लॉन्ग रेजिफ्लेक्स कपलिंग. सो इट डिपेंड्स. ओके, सो इस टाइम पे आपको फेज का ही सहारा लेना है कि दो बेरिंग के बीच में यदि 180 डिग्री का मुझे डिफरेंस मिलता है, बीच में कपलिंग है, देन इट इज माय पैरेलल मिसअलाइनमेंट.
और एंगुलर एक्सेल रीडिंग में यदि मुझे 1x 2x 3x में यदि डिफरेंस मिलता है, देन हाई एक्सेल वाइब्रेशन 180 डिग्री अक्रॉस द कपलिंग फेस चेंज, देन इट्स अ एक्सेल और एंगुलर मिसअलाइनमेंट। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि कपलिंग का भी डिटोरेशन यहाँ पे एंगुलर मिसअलाइनमेंट में पता चल सकता है, क्योंकि एक्सेल रीडिंग बहुत ज्यादा होता है। नाउ मिसअलाइन्ड बेयरिंग ऑन द शाफ्ट, जो सेम केस है, या फिर मिसअलाइन्ड बेयरिंग ऑन शाफ्ट, कॉग्ड बेयरिंग, ट्विस्टिंग मोशन ऑफ द बेयरिंग, ये सारा चीज एक ही है। ओके, सो मशीन में मिसअलाइनमेंट नहीं है, लेकिन वो बेयरिंग शाफ्ट के ऊपर मिसअलाइंड हो गई है। इन दैट केस सिर्फ एक्सियल रीडिंग बहुत हाई होता है, और मैंने जैसे बोला टॉप टू बॉटम और साइड टू साइड 12 o'clock 6 o'clock में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, या तो फिर 3 o'clock और 9 o'clock में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, यू विल गेट अ मिसअलाइन्ड बेयरिंग। सो देखिए स्पेक्ट्रम अभी मिसअलाइनमेंट का भी 1x 2x 3x था, एंगुलर का भी, पैरेलल का भी, और मिसअलाइन्ड बेयरिंग का भी। तो इन दिस केस कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे क्लिक करना है कि जनरली जब मिसअलाइनमेंट होता है तो अक्रॉस द कपलिंग दोनों बेरिंग पे वाइब्रेशन ज्यादा होता है, और जब भी मिसअलाइंड बेरिंग होता है उसी पर्टिकुलर बेरिंग का वाइब्रेशन ज्यादा होता है, और वो भी एक्सियल डायरेक्शन में। तो ये सिंपल सिंपल जो क्लू है, हर एक जो मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, और किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसकी वजह से वो डिफरेंट है। ओके, नाउ बेरिंग्स, एंटीब्रेशन बेरिंग्स, स्टेज 1 फेलियर। स्टेज 1 फेलियर जो है, स्टेज 1 का जो डिटोरेशन है वो जनरली वाइब्रेशन में डिटेक्ट बहुत ही कम होता है। मीन्स आप एक्सेलरेशन वैल्यू भी मॉनिटरिंग करते हो, फिर भी वो वैल्यू एक स्टेबल लेवल पे होती है। यदि आप कोई हाई अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे तो आपको उस टाइम पे पता चलेगा, बट यू कैन नॉट स्टॉप द मशीन एट दैट स्टेज। सिर्फ आपको पता चलेगा कि ये बेरिंग फेल हो सकता है। ओके, स्टेज 2 में क्या होगा कि बेरिंग का कंपोनेंट का नेचुरल फ्रीक्वेंसीज थोड़ा थोड़ा डेवलप होना चालू हो जाएगा, और स्टेज 2 में आपको एक्सेलरेशन वैल्यू में भी चेंजेस आना चालू हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी विल ऑकर एट 500 टू 2000 हर्ट्ज के बीच में आएगा। तो उस टाइम पे आपको बेरिंग का कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज वहां पे जनरेट होगा, दैट विल इंडिकेट यू कि इसमें बेरिंग का इशू चालू हो गया है। यू मे ग्रीस एट दिस पॉइंट, आई एम टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, कि एट दिस स्टेज आपको थोड़ा सा चेंज एक्सेलरेशन वैल्यू में मिलेगा, और उस एक्सेलरेशन वैल्यू के बेसिस पे यदि आप सही अमाउंट में ग्रीसिंग करोगे, व्हाट विल हैपन, थोड़ा सा वहां पे डिटोरेशन रुक जाएगा, पॉज लेगा। लेकिन यू आई कैन नॉट से, आई विल नॉट से कि डिटोरेशन रुक गया और बेरिंग अच्छा हो गया। द डैमेज बेरिंग नेवर गेट्स गुड वन। ओके, द डिटोरेशन का प्रोसेस जो है उसको स्लो कर सकते हैं, और हमारा टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं। स्टेज 3 में बहुत सारा चीज होगा। स्टेज 3 में एक्सेलरेशन वैल्यू बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन में भी रिफ्लेक्शन होगा, फिर इनर रेस डैमेज है, आउटर रेस डैमेज है, केज डैमेज है, बॉल डैमेज है। ये सारा चीज आप स्टेज 3 में डिटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको सारा फ्रीक्वेंसीज क्लियरली आएगा कि मिस मेरा जो वियर पैटर्न है वो क्लियर कट आपको स्पेक्ट्रम में दिखाई देगा कि इसमें ये इनर रेस का प्रॉब्लम हो गया है, आउटर रेस का प्रॉब्लम हो गया है, या वॉट एवर। एंड स्टेज 4, इस स्टेज में जाना नहीं है। ओके, यू यू शुड नॉट गो टिल कि व्हाट हैपेंस इन स्टेज 4 बेरिंग डिटोरेशन। कभी भी फेलियर हो सकता है, नॉइज बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, और शाफ्ट के ऊपर मार्किंग आ सकता है, की को डैमेज कर सकता है। तो वी शुड अवॉइड स्टेज 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यू मे गो अप टू स्टेज 3 ओनली, स्टेज 4 का राह नहीं देखना है। कब डैमेज हो जाएगा और सेकेंडरी डैमेजेस बढ़ जाएंगे, you will never know. Okay, so we should not go with this. So stage 4 is a very dangerous stage. We should restrict the machine operation up to stage 3 only. Still somebody wants to find out कि इस बेरिंग का अभी कौन सा पार्ट, या फिर फ्रीक्वेंसी कौन सा है, इनर रेस का, आउटर रेस का, केज का, बॉल का।
So these are the universal formulas available, and all these data, that is the N, DR, DC, that is diameter of cage, rolling element, angle contact alpha, number of rolling elements. So this technical data comes with the bearing manufacturer already provides. Okay, so for the students, for the calculation purpose, the all data is available with the bearings manufacturer. Okay, and you can calculate, you can put the data and find out the defect frequency. Once you get the defect frequency, key for this bearing, the defect frequency is 2150. वन एग्जांपल दे रहा हूं, वो 2150 हर्ट्ज पे मेरे स्पेक्ट्रम में कोई फ्रीक्वेंसी है क्या? इफ यस, देन आई हैव अ इनर रेस प्रॉब्लम. If 2566 2570 frequency मैंने outer race का calculate किया, I have to find out in the spectrum if there is a frequency available, then outer race problem is there. So in this way, okay. Nowadays, softwares are there for the industry people. आप bearing का number डाल दो, automatically calculate खुद के आ जाएगा. So जिनके पास, स्टूडेंट्स के पास तो सॉफ्टवेयर का चांस ही नहीं है. सॉफ्टवेयर ना होते हुए भी हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड आउट द डिफेक्ट फ्रीक्वेंसी इन अ लैब इटसेल्फ. ओके, so what is DR, N, inner race, outer race? This is a simplified snap for you. Now, some another problems. कि हाइड्रोलिक एंड एरोडायनेमिक फोर्सेस, इफ द गैप पंप्स के लिए ये फ्रीक्वेंसी जनरली देखा जाता है ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी. ओके, पंप के इंपेलर में भी गाइड वेन्स होते हैं या फिर ब्लेड्स होते हैं. सो इफ द गैप बिटवीन वेन्स एंड केसिंग इज नॉट इक्वल, वेयर एंड टेयर ओवर द पीरियड ऑफ ऑपरेशन होता है, द ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी में हैव अ हाई एम्पलीट्यूड. ओके, सो वो फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगा? सॉरी, मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एनालिसिस के पहले बताया नहीं कि बिफोर एनालाइजिंग एनी मशीन, ओके, बिफोर एनालाइजिंग एनी मशीन, आई मस्ट नो द टेक्निकल डेटा ऑफ योर मशीन. ओके, ये सबसे पहले बोलना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट. आई मस्ट नो द टेक्निकल डेटा, जस्ट लाइक माई मोबाइल फोन, कि मेरा मोबाइल फोन का टेक्निकल डेटा क्या है. मेरा 6.5 स्क्रीन है, 6 GB रैम है, इतना स्टोरेज है, वो प्रोसेसर है, इतना उसका बीट्स है, ये सेंसर है, वो सेंसर है, ये प्रोटेक्शन है, ऑल दीज थिंग्स. सिमिलर फॉर अ पर्टिकुलर मशीन और ऑक्सिलरी, यू मस्ट नो योर टेक्निकल डेटा, कि इस मशीन का आरपीएम क्या है, मोटर किस आरपीएम से घूम रही है, आगे का गियर बॉक्स में इनपुट का स्पीड कितना है, इंटरमीडिएट का स्पीड कितना है, आउटपुट का कितना है, विच टाइप ऑफ बेरिंग इज मोटर एनडी, विच टाइप ऑफ इज मोटर डी, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज, व्हाट टाइप ऑफ फाउंडेशन इज देयर, number of gear teeth on input, output, intermediate, and the pinion girth gear, and all these things. What is the RPM at input side, what is the RPM at output side, and all these things. कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. द डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल विद द OEM, एंड वही हम लोग को टैबलेट करके रखते हैं. जब भी मुझे कोई 1000 RPM से कोई मशीन घूम रहा है, उस इंपेलर का नंबर ऑफ ब्लेड्स आर 5, मुझे 5000 हर्ट्ज का 5000 CPM का कोई फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, आई मस्ट कोरिलेट कि 5 इंपेलर का वेन्स है, 1000 RPM से घूम रहा है, 100 into 5, 5000, आई एम गेटिंग अ फ्रीक्वेंसी. So number of blades into RPM is my blade pass frequency. Number of vanes into RPM, my vane pass frequency. Number of gear teeth into RPM, my gear mesh frequency. Number of fan blades into RPM is my fan blade frequency. So number of that into the RPM. So gear boxes के एनालिसिस में भी यही होता है कि कौन सा गियर टीथ डैमेज है या डिटोरेशन है, तो नंबर ऑफ गियर टीथ इनटू RPM. ओके, सो उस टाइम पे हम लोग एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इनपुट का है, आउटपुट का है, या इंटरमीडिएट का है. उसका एक मैं आपको अच्छा सा केस स्टडी भी बताऊंगा. ओके, सो यदि वो
उसमें उस मशीन में नंबर ऑफ ब्लेड्स इनटू आरपीएम वो वाला फ्रीक्वेंसी आता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर दैट मशीन हाइड्रोलिक और एरोडायनामिक फोर्सेस। ओके, यदि प्रॉब्लम नहीं है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होगा। फ्लो टर्बुलेंस 1x आरपीएम, जनरली क्या है कि हेल्दी मशीन का स्पेक्ट्रम भी क्या आएगा, जनरली 1x आएगा, व्हाट इज द रनिंग स्पीड ऑफ द मशीन, एंड सम 2x 3x बहुत ही छोटा एम्पलीट्यूड के साथ, लो एम्पलीट्यूड के साथ स्पेक्ट्रम बनेगा। Now, if there is some random kind of frequencies before 1x also, okay, कि सपोज 1000 आरपीएम से मशीन घूम रहा है, 1x 1000 पे आ गया, उसके पहले ही कुछ रैंडम फ्रीक्वेंसीज है जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो, देन आई हैव अ फ्लो टर्बुलेंस प्रॉब्लम। कैविटेशन, प्लेट पास फ्रीक्वेंसी के बाद में यदि रैंडम फ्रीक्वेंसी का बैंड आता है, देन आई हैव अ कैविटेशन। और कैविटेशन का एक इंडिकेशन भी है कि जब भी आप डिस्चार्ज साइड में खड़े होगे, ओके, तो डिस्चार्ज साइड में खड़े होने के बाद वहां पे आपको घुंघरू के छन 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 जैसा आवाज आएगा। सो दैट इज माय कैविटेशन प्रॉब्लम। और वो जो एयर वाटर बबल्स और एयर बबल्स जो स्ट्राइक हो रहे हैं वहां पे पाइप के ऊपर, दैट इज क्रिएटिंग अ ग्रेवल साउंड। नाउ डीसी मोटर्स प्रॉब्लम। मोटर्स, डीसी मोटर्स में क्या है कि जनरली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन मतलब क्या, इन इंडिया वी हैव 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन इज 50 हर्ट्ज, दैट इज 3000 cpm. Okay, so 50 hertz is my frequency of line, 2 into line frequency is my 100 hertz. Okay, if I get a frequency at 6 into frequency of line, that is the SCR firing rate, then I have a problem with my DC motor. Okay, इलेक्ट्रिकल मोटर्स के प्रॉब्लम समझने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन ऑलरेडी पता है। इन इंडिया 50, सम कंट्रीज में 60 है, वी विल नॉट सी द 60 हर्ट्ज। नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स मतलब क्या, 3000 आरपीएम की मोटर के लिए पोल्स आर नंबर, टोटल नंबर ऑफ पोल्स आर 2। आरपीएम बढ़ेगा 15, आरपीएम कम होगा 1500, नंबर ऑफ पोल्स आर 4। ओके, उससे भी कम होगा तो 8, 750 आरपीएम के लिए 8। लेस द नंबर ऑफ पोल्स, हायर इज आरपीएम, less the RPM, higher is the pole. Okay, so rotor bar pass frequency, number of rotor bars into RPM. अभी ये rotor bars कौन बताएगा, अगेन द मैन्युफैक्चरर, या फिर कभी कभी मैन्युफैक्चरर के पास भी नहीं है, देन जब भी वो मोटर खुलेगा मेंटेनेंस के लिए, यू हैव टू काउंट इट एंड रिकॉर्ड इट। Synchronous speed 120 into FL divided by P. FL is the frequency of line और P is the number of poles. एंड स्लिप फ्रीक्वेंसी, स्लिप मतलब क्या, भले ही मैन्युफैक्चरर ने बोला कि दिस मशीन स्पीड इज 1500 आरपीएम, इन रियल लाइफ इट विल रन एट 1410, 1400 and sorry 1490, 1485, 1492, 93. So what is the difference between the actual मतलब rated speed and actual speed, that is your slip. Okay, so these are the important parameters. Now, static eccentricity, shorted limitation and loose ion, जब भी ये प्रॉब्लम होगा यू विल गेट अ हाई एम्पलीट्यूड एट 2 into लाइन फ्रीक्वेंसी, मींस 100 हर्ट्ज के आसपास आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज मिलेगा, सॉरी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन जो है, सबसे बड़ा जो पीक रहेगा वो 100 हर्ट्ज का रहेगा। ओके, सो स्टेटर में इसेंट्रिसिटी ड्यू टू अनइवन एयर गैप रहेगा और वाइब्रेशन विल बी वेरी डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब यदि उस रोटर ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पकड़ लिया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रीडिंग ज्यादा होगा, यदि उस रोटर ने एक्सियल डायरेक्शन में पकड़ लिया तो एक्सियल डायरेक्शन का ही रीडिंग ज्यादा रहेगा। ओके, तो सॉफ्ट फुट कैन प्रोड्यूस एसेंट्रिक स्टेटर, तो स्टेटर का जो इसेंट्रिसिटी है वो लाइन फ्रीक्वेंसी का हाई एम्पलीट्यूड से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर में जो है वो लूज स्टेटर कॉइल्स, ओके,
सो लूज स्टेटर कॉइल्स जो है, वो लूज रोटर स्टेटर कॉइल्स जो है वो कैसे पता चलेगा? यू विल गेट अ स्पेक्ट्रम, यू विल गेट अ स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ स्टेटर कॉइल्स इनटू आरपीएम, ओके, नंबर ऑफ स्टेटर कॉइल्स इनटू आरपीएम का आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। और साइड बैंड जो है, इसे ये मेन मेन जो पीक है वो ये रहेगा, नंबर ऑफ कॉइल पास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू आरपीएम, और उसको उस मशीन के रनिंग आरपीएम जो है, कि सपोज वो मोटर 1000 आरपीएम से रन हो रही है, तो इस तरह से दो साइड बैंड जनरेट होंगे कॉइल पास फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट कि मुझे नंबर ऑफ स्टेटर कॉइल्स पता है एंड नंबर ऑफ स्टेटर कॉइल्स इनटू आरपीएम, कॉइल पास फ्रीक्वेंसी को 1x का साइड बैंड्स जब भी आएगा, यू कैन फाइंड आउट कि इसमें लूज स्टेटर कॉइल्स का इशू है। इसेंट्रिक स्टेटर देखा हम लोगों ने, इसेंट्रिक रोटर देखेंगे। इसेंट्रिक रोटर में क्या होगा कि 2 लाइन फ्रीक्वेंसी तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसको साइड बैंड्स आएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन, पोल पास फ्रीक्वेंसी का, सॉरी, नंबर ऑफ पोल्स इनटू द स्लिप। ओके, पोल पास फ्रीक्वेंसी का यदि साइड बैंड्स 2 लाइन फ्रीक्वेंसी को आएगा, अभी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया कि हर चीज अरे मिक्स हो रहा है, बट शांति से आप जब भी इस पीपीटी को या इस वीडियो को फिर से देखोगे, ओके, तो आपको पता चलेगा कि हर एक स्पेक्ट्रम में एक यूनिकनेस है। ओके, सो वही यूनिकनेस मैं आपको बता रहा हूं कि 2 लाइन फ्रीक्वेंसी इसेंट्रिक स्टेटर में भी आएगा और इसेंट्रिक रोटर में भी आएगा, लेकिन इसेंट्रिक रोटर में क्या डिफरेंस है? पोल पास फ्रीक्वेंसी का साइड बैंड इसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा। ओके, पावर सप्लाई और फेजिंग का प्रॉब्लम, इसमें क्या होगा कि 2 लाइन फ्रीक्वेंसी को साइड बैंड्स तो आएंगे, लेकिन पोल पास फ्रीक्वेंसी के नहीं आएंगे, 1/3 FL के आएंगे। मतलब 50 हर्ट्ज डिवाइड बाय 3 जो भी वैल्यू आएगी उसका वहां पे साइड बैंड्स वहां पे जनरेट होगा, तो आपको पावर सप्लाई फेजिंग का प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। सो इन दिस वे ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट, हैविंग ए डिफरेंट स्पेक्ट्रम। रोटर बार्स, रोटर बार्स में यदि प्रॉब्लम है, व्हाट विल हैपन? रोटर बार में प्रॉब्लम है तो नंबर ऑफ रोटर बार इनटू आरपीएम का भी स्पेक्ट्रम आ सकता है। लूज रोटर बार है तो नंबर ऑफ रोटर बार पास फ्रीक्वेंसी और 2 लाइन फ्रीक्वेंसी का उसको साइड बैंड आएगा। ओके, यहाँ पे है सपोज देर इज 100 रोटर बार्स, ओके, rotating at sorry 10 rotor bars rotating at 1000 rpm, 10,000 पे आपको रोटर बार पास फ्रीक्वेंसी आएगा और 2 लाइन फ्रीक्वेंसी का साइड बैंड्स मींस 50 हर्ट्ज आगे और 50 हर्ट्ज पीछे, ये जो दो साइड बैंड्स है वो आएंगे, तो यू कैन से दैट इज अ लूज रोटर बार्स। लेकिन रोटर बार डैमेज हो गए तो 1x 2x 3x का वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम पे पोल पास फ्रीक्वेंसी का साइड बैंड्स आएगा। सो डैमेज के लिए अलग स्पेक्ट्रम है, लूजनेस के लिए अलग स्पेक्ट्रम है। लेफ्ट वाला स्पेक्ट्रम जो है वो डैमेज के लिए है, राइट वाला जो स्पेक्ट्रम है वो लूजनेस के लिए। और इन सबसे भी वेल इन एडवांस यदि ढूंढना है तो मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस का टेस्ट आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोटर करंट इंडेक्स यदि 40 से नीचे जाता है then you have a rotor bar problems. You must open your motor for damage to or damage or looseness or deviations in the your rotor bars. फिर भी आपको कैलकुलेट करना है कि मोटर में कितने रोटर बार डैमेज हुए हैं। जनरली इन रियल लाइफ अगेन दिस डज नॉट मैटर, एक डैमेज हो या दो डैमेज हो या चार डैमेज हो, डजंट मैटर्स, यू हैव टू ओपन द मोटर एंड रिपेयर इट। बट मोटर खोलने से पहले ही यदि आपको कैलकुलेट भी करना है देन दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, 2 into R, R is a number of rotor bars, 10 into N divided by 20 plus P. N is a एवरेज डीबी डिफरेंस जो इसमें आएगा मोटर करंट इंडेक्स में, जो एवरेज डीबी डिफरेंस आएगा वो वैल्यू। ओके, एंड पी इज द नंबर ऑफ
पोल पेयर्स, ये 2 है, 4 है, 6 है, वॉट एवर। सो एक टेंटेटिव मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। ओके, नाउ लूजनेस की तरफ जाएंगे हम लोग। जैसे हम लोगों ने देखा कि लूजनेस में स्पेक्ट्रम जो है वो 2-3 टाइप का लूजनेस है। तो लूजनेस में जो स्पेक्ट्रम है वो 1x आएगा, बहुत बार 1x 2x 3x 4x मल्टीपल्स आएंगे, कभी कभी सिर्फ उसमें हाफ एक्स भी आएंगे। सो बेस्ट वे इज टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस, कि मोटर का फुट और बेस प्लेट इसमें फेज लूंगा मैं, बेस प्लेट और बेस इसमें फेज लूंगा मैं। जिन दो चीजों में मुझे फेज डिफरेंस 180 डिग्री का मिलेगा, देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर माय मशीन। दूसरे टाइप का लूजनेस जो है वो लूज फिलो ब्लॉक बोल्ट्स। इसमें क्या होगा कि 0.5x भी आएगा। 1x मतलब मशीन का स्पीड, दैट इज 1000 आरपीएम से यदि मशीन घूम रहा है, मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए 1000 आरपीएम ले रहा हूँ। सो 1000 आरपीएम से मशीन घूम रहा है, तो मुझे 500 सीपीएम पे भी 0.5x मिलेगा, 1x 2x 3x मिलेगा। मींस दैट इंडिकेट्स क्रैक्ड फ्रेम स्ट्रक्चर और बेरिंग ब्लॉक। ओके, 0.5x यदि आया तो प्रॉब्लम है। बेरिंग लूजनेस में क्या होगा, बेरिंग लूजनेस में 1x 2x 3x 4x 5x 10x तक आपको मिलेगा। ओके, कभी कभी हाफ एक्स 1.5x ये भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको बेरिंग का लूजनेस भी पता चल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ हार्मोनिक्स आपको 2x 3x 4x 5x मिल रहा है, इसका मतलब वो मशीन उस आरपीएम से घूम रहा है क्या? नहीं, मशीन इज रोटेटिंग एट 1x ओनली, but due to the looseness it is generating some additional harmonics, some additional peaks that indicating you the looseness. अच्छा, रोटर रबिंग हो रहा है, रोटर कहीं तो घिस के चल रहा है, स्टेशनरी एंड रोटेटिंग पार्ट में क्लियरेंस बहुत डिस्ट्रॉय हो गया है, वो टच करके चल रहा है किसी एरिया में या पूरे सरकमफरेंस में। What kind of spectrum it will generate? It will generate half x, 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, मीन्स हाफ भी जनरेट होगा और डेढ़ भी जनरेट होगा, 1 भी जनरेट होगा, 1.5 भी जनरेट होगा, 2 भी जनरेट होगा, 2.5 भी जनरेट होगा। मीन्स 500 पे एक पीक आएगा, 1000 पे आएगा, 1500 पे आएगा, 2000 पे आएगा, इन दिस वे। सो इसका मतलब है कि रोटर कहीं तो अंदर से रबिंग होना चालू हो गया है। नाउ इसेंट्रिक रोटर पुलीज में इस तरह से जो है, इसेंट्रिक पुली में जो पुली इसेंट्रिक होगा उसी का स्पेक्ट्रम वहां पे जनरेट होगा। या तो फैन का पुली का स्पेक्ट्रम आएगा या तो मोटर का आएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो दोनों का स्पेक्ट्रम अलग अलग पीक वहां पे जनरेट होगा। बेल्ट में यदि रेजोनेंस है तो बेल्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसीज वहां पे जनरेट होगा। बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा लूज है, तो उस केस में इस तरह का एडिशनल फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा एंड इट विल शो यू हाई वाइब्रेशन एट बेल्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बिकॉज बेल्ट रेजोनेंस मतलब क्या है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कोइंसिडिंग विद द ऑपरेशनल स्पीड। ओके, सो बेल्ट फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट कैन बी अल्टरिंग द बेल्ट टेंशन। तो बेल्ट टेंशन एडजस्ट करके हम लोग इस बेल्ट रेजोनेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। वर्न आउट और लूज बेल्ट, इसमें क्या है कि बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे 1x बेल्ट आएगा, 2x भी आएगा, ड्राइवर पुली भी आएगी, ड्रिवन पुली भी आएगी। तो ये सारा चीज यहाँ पे आएगा और 2x सबसे बड़ा होगा। जब भी 2x रहेगा तो वहां पे बेल्ट का इंस्पेक्शन, लूजनेस या मिसमैच कोई है तो वो हम लोग को डिटेक्ट करना है। इसेंट्रिक पुलिस, जो भी इसेंट्रिक रहेगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी इसेंट्रिक पुली रहेगी उसी का वहां पे स्पेक्ट्रम जनरेट होगा पर्टिकुलरली। एंड वो पुली का स्पेक्ट्रम जैसे ही जनरेट होगा आपको पता चल जाएगा कि मेरा मोटर का आरपीएम 1500 है, मेरा दूसरे फैन का स्पेक्ट्रम 500 है। तो 500 वाला पीक जनरेट हुआ है कि 1500 वाला जनरेट हुआ है, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सा पुली इसेंट्रिक हुआ है। मिसअलाइनमेंट में ड्राइवर और ड्रिवन पुली का 1x और हाई एक्चुअल रीडिंग यहाँ पे आएगा, उससे ये डिफर करेगा कि इस मशीन में अलाइनमेंट का इश्यू है।
और वो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम जो है वो एक्सल रीडिंग दोनों जगह पे आपको मिलेगा, कि ड्राइवर पुली पे भी मिलेगा और ड्रिवन पुली पे भी मिलेगा। नाउ स्लीव बेरिंग, व्हाइट मेटल बेरिंग, बैबिट मेटल बेरिंग, जर्नल बेरिंग, ये सारा जो है, इनमें यदि क्लियरेंसेस बढ़ जाता है, इनमें यदि लूजनेस आ जाता है, व्हाट हैपन्स, क्लियरेंसेस यदि बढ़ता है तो आपको लूजनेस वाला कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। 1x 2x 3x 4x 5x 7x तक मिलेगा, 10x तक भी मिला है हम लोगों को। तो जब भी ऑल द प्रॉब्लम्स आर एलिमिनेटेड एंड स्टिल यू आर गेटिंग अ जर्नल बेरिंग पे ये स्पेक्ट्रम यदि मिलता है, श्योर शॉट द बेरिंग इज लूज। मैं इसका एक केस स्टडी आपको दिखाऊंगा। सबसे डेंजर कंडीशन, द ऑयल व्हर्ल, ऑयल वेप। ओके, यदि जर्नल बेरिंग पे 0.42% से लेके 48% के बीच में कोई भी पीक जनरेट होता है, योर मशीन इज इन डेंजर। ओके, सो ऑयल का वहां पे वर्लिंग हो रहा है, या तो ऑयल वर्ल इज वेरी वेरी क्रिटिकल डेंजर। ओके, मीन्स व्हाट कि सपोज 1000 आरपीएम से कोई जनरल बेरिंग घूम रहा है, तो 42 से 48% मीन्स 420 से 480 के बीच में यदि कोई पीक जनरेट हो जाता है, then you should immediately look after that machine. Okay, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा, लेकिन किस वजह से बढ़ा है इसका कंफर्मेशन के लिए आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपको क्लियरली बता देगा। नाउ गियर, अभी गियर में क्या है कि गियर में फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गियर में फ्रीक्वेंसी आएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना है ये आपको देखना है, उसमें कोई साइड बैंड्स है क्या ये आपको देखना है। तो गियर में फ्रीक्वेंसी आया मतलब गियर डैमेज हो गए, ऐसा नहीं होता है। सो गियर में फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि नंबर ऑफ गियर टीथ्स इनटू आरपीएम। जो दो गियर मेश हो रहे हैं वो दोनों का गियर में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। सी हियर, 8 into 2625 आरपीएम, गियर मेश फ्रीक्वेंसी इज 21 kcpm, या फिर 14 into 1500 आरपीएम, आपको वही गियर मेश फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जो दो गियर मेश होंगे उनका गियर मेश फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ओके, टूथ लोडिंग जब होगा तब आपको हाई गियर मेश एम्पलीट्यूड्स मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी आपको टूथ लोडिंग होगा तब आपको इस तरह का 1x पिनियन गियर, 2x, 1x पिनियन और गियर मेश फ्रीक्वेंसी जनरली मिलेगा। टूथ में जैसे ही वियर चालू हो जाएगा, जिस गियर में वियर चालू हो जाएगा उसका आपको साइड बैंड्स वहां पे मिलेगा। अभी देखिए, दोनों गियर का गियर में फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम आएगा ही, सेम ही है, रहता ही है। ओके, नंबर ऑफ टिट्स इनटू आरपीएम, नंबर ऑफ टिट्स इनटू आरपीएम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आरपीएम। ओके, तो आरपीएम जो है, यदि गियर मेश फ्रीक्वेंसी को 2625 आरपीएम का साइड बैंड्स आता है तो मेरा छोटा वाला गियर डिटोरेट हो रहा है। यदि 1500 आरपीएम का गियर साइड बैंड आता है गियर मेश फ्रीक्वेंसी को, मेरा बड़ा वाला गियर डिटोरेट हो रहा है। सो साइड बैंड्स आर द बेटर वियर इंडिकेटर देन द गियर मेश फ्रीक्वेंसी, क्योंकि गियर मेश फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों का। आप एक गियर में फ्रीक्वेंसी से नहीं बता सकते कि छोटा वाला गियर डैमेज हो रहा है कि बड़ा वाला हो रहा है, लेकिन साइड बैंड्स, ये जो साइड बैंड्स है वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस गियर में वियर चालू हो गया है। गियर एसेंट्रिसिटी एंड बैकलैश, अगेन इसमें जीएमएफ जो है वो आपको बताएगा, और इसमें भी साइड बैंड्स का बहुत बड़ा रोल है। जब भी बैकलैश आपका बढ़ेगा तो हाई वाइब्रेशंस लेवल्स वहां पे जनरेट होंगे और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी वहां पे जनरेट होगा। नाउ गियर मिसअलाइनमेंट, गियर मिसअलाइनमेंट में क्या है कि गियर जब भी मिसअलाइंड होंगे तो गियर मेश फ्रीक्वेंसी इंटू 2 इंटू गियर मेश फ्रीक्वेंसी प्लस 3 इंटू गियर मेश फ्रीक्वेंसी, इस तरह से जैसे वाइब्रेशन के नॉर्मल स्पेक्ट्रम में 1x 2x 3x जनरेट होता है, वैसे गियर मेश फ्रीक्वेंसी का 1x 2x 3x ये भी जनरेट होंगे।
तो आपका एफ मैक्स जो है, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आपका जो सिलेक्शन है रेंज स्पेक्ट्रम का, वो बड़ा होना चाहिए। तो सपोज मेरा गियर में फ्रीक्वेंसी 25,000 पे है, तो 3 गियर में तो भी आना चाहिए, इतना मेरा एफ मैक्स होना चाहिए। मतलब क्या है कि 0 से 1 लाख CPM तक यदि मैंने रखा, तो मेरा 25,000, 50,000, 75,000 पे 3 गियर में फ्रीक्वेंसी बैठ जाएगा। यदि आपने समझो 60,000, 0 to 60,000 ही रखा, तो तीसरा गियर में आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, सो it is very important to set fmax high enough to capture at least 2 into GMF। ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा कि 3 यदि आता है तो दैट इज वेरी वेरी गुड। ओके, सो गियर मिसअलाइनमेंट में 1x 2x 3x वहां पे जनरेट होगा। क्रैक्ड और ब्रोकन टूथ, क्रैक्ड एंड ब्रोकन टूथ विल जनरेट हाई एम्पलीट्यूड, यहाँ पे रहेगा, नॉइज भी बढ़ेगा। ओके, और टाइम वेव फॉर्म में आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता चलेगा कि ये ब्रोकन टूथ का इम्पैक्ट आया, इम्पैक्ट आया, इम्पैक्ट आया। तो ये जनरली न्यू मशीन्स में हो सकता है, क्योंकि हैंडलिंग में वगैरह कुछ डैमेज हो गया, तो चलाते वक्त ही इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। या रनिंग कंडीशन में भी बहुत साल हो गए किसी गियर बॉक्स को, तो कोई गियर का टूट गया, तो प्रोवाइडेड वो मेशिंग में ना आए और बाहर बाहर मतलब दूसरे एरिया में जाके गिर जाए ऑयल में, उस टाइम पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। यदि उसी मेशिंग में आ गया तो सारे तीत टूट जाएंगे। हंटिंग टूथ, ये लो फ्रीक्वेंसी वाला है गियर का प्रॉब्लम। ओके, और इसमें क्या है कि हंटिंग टूथ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए GMF चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पिनियन गियर का टीथ एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड द पिनियन में जो 2 गियर है उनके दोनों के नंबर ऑफ टीथ चाहिए। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जनरली फॉल्टी मैन्युफैक्चरर की वजह से या फिर मिसहैंडलिंग की वजह से आते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट प्रॉब्लम है, एक बार हम लोग को मिल रहा था लेकिन बाद में वो भी करेक्ट हो गया। जनरली वो बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, बट दिस इज यूनिफॉर्म फॉर्मूला फॉर हंटिंग टूथ फ्रीक्वेंसी finding। Okay, so till now I have spoken on lot of things। ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अनबैलेंस के बारे में बात हुआ, मिसअलाइनमेंट के बारे में बात हुआ, लूजनेस के बारे में बात हुआ, मोटर का प्रॉब्लम्स, पुलिस के प्रॉब्लम और गियर के प्रॉब्लम्स एंड द लूजनेस। ओके, ऑयल वर्ल के बारे में बात हुआ है। ऑयल वर्ल जो है वो क्रिटिकल है 42% टू 48% ऑफ द रोटर स्पीड, यदि उसके बीच में आता है तो प्रॉब्लम है। अनबैलेंस में 1x कॉमन रहेगा, लेकिन फेज से आप पता कर सकते हैं कि किसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे वेट लगाना है, एक जगह वेट लगाना है, 2 जगह वेट लगाना है, या मल्टीपल जगह पे वेट लगाना है। दूसरा, मिसअलाइनमेंट में अक्रॉस द कपलिंग फेज एंगल मेजर करना है। कॉक्ड बेयरिंग में टॉप बॉटम और साइड में मेजर करना है। देन इसेंट्रिक स्टेटर में 2 into लाइन फ्रीक्वेंसी, इसेंट्रिक रोटर में साइड बैंड्स आएंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन के। देन रोटर के प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ रोटर बार्स इनटू RPM। ओके, लूजनेस में 1x 2x 3x आएंगे, रबिंग है तो हाफ x भी आएगा। ओके, और गियर्स में जनरली जो भी गियर का प्रॉब्लम होगा उसका ही साइड बैंड वहां पे जनरेट होगा। मिसअलाइनमेंट है तो गियर मेश 1 2 3 तक जनरेट होगा, और बैकलैश है तो वहां पे उसी गियर का हाई एम्पलीट्यूड वहां पे रहेगा। सो डे 1 में या फिर इस 2 घंटे के सेशन में आप पूरा सीख गए, आई विल नॉट एक्सपेक्ट। यू शुड प्रैक्टिस, सी द कोरिलेट विद द एक्चुअल प्रॉब्लम्स, और आप धीरे धीरे देखोगे ना। दोज हु आर इंटरेस्टेड ना, आई हैव अ वीडियो, आई कैन सेंड यू वाया व्हाट्सएप। ओके, तो वो वीडियो देखो, ये PPT देखो, और उससे साइड बाय साइड कोरिलेट करते रहो। ओके, एक सेंटेंस पढ़ा, वो स्पेक्ट्रम देखा, क्या यूनिकनेस है, दूसरे स्पेक्ट्रम के साथ ये कैसे डिफर करता है, इस तरह से
क्योंकि मैं भले ही इतना बोल पा रहा हूँ, लेकिन इट ऑल्सो टुक सम टाइम फॉर मी। ओके, सो नो नीड टू पैनिक, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसी में डेडिकेटेड काम करो तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। नाउ वी विल मूव टू द केस स्टडीज। ओके, आपको उसी के रिलेवेंस से कुछ केस स्टडीज में आज बताऊंगा। 1 मिनट। कुछ केस स्टडीज में आपको हमारे प्लांट का बताऊंगा। ओके, दिस ऑल हैज बीन रिव्यूड बाय इंटरनेशनल पैनल्स एंड वेरियस जगह पे ये मतलब हर एक केस स्टडी अलग अलग जगह पे वेरियस कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश हो चुका है। ओके, द फर्स्ट केस स्टडी आई विल टेक। केस स्टडी में आप यही देखिए कि रूटीन मॉनिटरिंग में कैसे डेविएशन आया, उसका स्पेक्ट्रम क्या मिला। कंफ्यूजन था तो हमने फेज लिया, फेज लेने के बाद कंफर्म किया और जो बोला वही प्रॉब्लम आया, वही प्रॉब्लम हम लोगों को मेंटेनेंस में मिला, वो करेक्ट किया और उसके बाद कंपैरिजन की। पहले इतना बढ़ गया था फिर नॉर्मल हो गया, पहले इतना बढ़ गया था फिर नॉर्मल हुआ। सो जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उसी के ऊपर मेंटेनेंस डिसाइड हुआ, वही मेंटेनेंस किया, अननेसेसरी कोई मेंटेनेंस नहीं किया। सेकेंडली, डेविएशन तो आया लेकिन कोई सेकेंडरी डैमेजेस नहीं होने दिया। अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ तो अलाइनमेंट करने के बाद सब अच्छा हो गया, लेकिन कोई बेरिंग भी डैमेज हो गया उसके साथ, या कोई सेकेंडरी पार्ट भी डैमेज हो गया, वो नहीं होने दिया। सो सेकेंडरी डैमेजेस आर अवॉइडेड, अर्ली डिटेक्शन, टाइमली डिटेक्शन से हम लोगों ने ये अचीव किया है। सो विल गो विद द फर्स्ट केस स्टडी। तो ये हमारा एक बॉयलर फीड पंप है जिसमें 8 बेरिंग्स है, जिसमें 6 नंबर और 7 नंबर बेरिंग का ही वाइब्रेशन में डेविएशन मिला। तो यू कैन क्लियरली सी हियर ट्रेंड में जो है, ओके, ट्रेंड यहाँ पे बढ़ गया। तो कितना बड़ा वाइब्रेशन रीडिंग 3.4 से 5.1, 1.1 से 1.7। स्पेक्ट्रम लिया 1x और 2x, बहुत ही छोटा आ रहा था, लेकिन कंफ्यूजन था कि मिसअलाइनमेंट हो सकता है लेकिन पता नहीं, हो सकता है। सो जो हो सकता है उसको कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने फेज का सहारा लिया। फेज अभी आपको बताने का जरूरत नहीं है, मल्टीपल फॉल्ट्स मशीन हैविंग मल्टीपल फॉल्ट, जब भी प्रॉब्लम हो सिमिलर पैटर्न्स में, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग को फेज का सहारा लेना पड़ता है। तो से फेज हम लोगों ने लिया, हमारे पास स्ट्रोबोस्कोप है तो स्ट्रोबोस्कोप वाइब्रेशन एनालाइजर से कनेक्ट किया। ओके, और मार्किंग टेप उस मशीन पे ऑलरेडी था ही। ओके, कपलिंग की वजह से ये जस्ट फोटो लेने के लिए मैंने इस तरह से लिया है। एक्चुअल जब भी हम शाफ्ट के ऊपर एम करेंगे तब वो वहां पे जगह कम थी, तो एक जस्ट दिखाने के लिए ये स्नैप ले लिया है। तो इस तरह से फेस का डिफरेंस हम लोग को मिला और वी वेर वेरी लकी कि हम लोग को फेस डिफरेंस जो है 180 डिग्री का मिला अक्रॉस द कपलिंग। देखिए, इस येलो येलो वाले पोर्शन पे हम लोगों ने एक फेस का रीडिंग लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा ये ऑरेंज कलर के मोटर के बेरिंग पे लिया, और इन दोनों के बीच में ये कपलिंग है। ओके, कपलिंग इज कवर्ड विद अ गार्ड फॉर सेफ्टी रीजंस। ओके, तो दोनों के बीच में एक कपलिंग है, तो जब भी अक्रॉस द कपलिंग हम लोग को क्या फेज एंगल मिला। फेज एंगल एक बेरिंग पे मिला 306 डिग्रीज, दूसरे पे मिला 126 डिग्रीज, and you can clearly see the phase difference is 180 degree across the coupling in horizontal direction, that is a parallel misalignment. Okay, so ये alignment disturb हम लोगों ने कंफर्म किया। once the alignment disturb was confirmed, मशीन को बंद कर दिया गया, स्टैंड बाय चालू किया, alignment checked, found 0.3 mm radially disturbed. Okay, these were the alignment readings, और इसका रूट कॉज भी ढूंढा कि क्यों हुआ ये। तो इसमें जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होते हैं ये हम लोगों ने 10 साल से चेंज नहीं किया था, एंड एट दिस पॉइंट सम जो है वो टूट गए थे, सम क्रैक्ड, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू रिप्लेस द फ्रेश पार्ट। ओके, इट इज अ सैक्रिफाइसिंग एजेंट, ऐसे नहीं कि डैमेज हो गया, ये कपलिंग का पीस वही यूज किया, सिर्फ ये जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, रबर का पार्ट होता है ये। सो ओवर द पीरियड ऑफ ऑपरेशन, जस्ट लाइक अ स्पाइडर होते हैं, पिन बुश टाइप कपलिंग में रबर होता है, उसी टाइप का ये
हाई क्वालिटी का या फिर हाई लोड के अगेंस्ट विस्टैंड होने वाला फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है. So flexible elements replaced, same coupling distance which was used, और see the results. 5.1 से 2.2 रिड्यूस हो गया, 1.7 से 1.1 रिड्यूस हो गया. और यदि ये पंप फेल हो जाता था तो हम लोग का बूस्टर पंप जो का बेरिंग जो है उसका 1 लाख रुपीस का नुकसान हो जाता था. वो हम लोगों ने होने नहीं दिया. नो सेकेंडरी डैमेजेस फॉर द मशीन. नाउ मेन कूलिंग वाटर पंप मोटर बेरिंग लूजनेस. अभी ये बड़े पंप है हमारे, डायरेक्ट कंडेंसर कूलिंग के लिए यूज होते हैं. ओके, तो 34 टन्स का मोटर है. मोटर को चेक करने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है. मतलब मोटर के अंदर नहीं, वहां पे एक जगह है, सेफ लोकेशन है. वहां पे जाने के बाद 34 टन्स का ये बिग मोटर है. आरपीएम है 297. 16 पोल स्पेशल डिजाइन मोटर. ओके, तो किस तरह का मोटर है ये? मोटर कपल्ड विद अ पंप. ओके, और ये समंदर से पानी खींचता है और खींच के कंडेंसर के कूलिंग के लिए भेजता है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, स्लो स्पीड मशीन है. तो स्लो स्पीड मशीन में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ज्यादा मिल रहा था. ओके, सो 3.8 से 101 ये एक दिन में नहीं हुआ था. ये पहले 30 गया, 40 गया, 70 गया, और फिर 100 हमारा लिमिट था तो हम लोगों ने स्टॉप कर दिया. मीनवाइल ये बढ़ रहा था तो हम लोगों ने क्या किया, मैन, मटेरियल, एक्सपर्ट, स्पेयर मोटर, ये सारा चीज हम लोगों ने एक जगह पे लाके, हाइड्रा क्रेन का अवेलेबिलिटी सब कुछ एक जगह पे लाके रख दिया. पंप का वाइब्रेशन में कोई चेंजेस नहीं था. सो हम लोगों ने स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया तो सी जर्नल बेरिंग 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6, 7, 8, 9 तक हम लोग को मिल रहा था. जर्नल बेरिंग में पंप का वाइब्रेशन नॉर्मल था. मोटर के जर्नल बेरिंग में इस तरह का स्पेक्ट्रम भी था, हाई वाइब्रेशन. कंक्लूडेड दैट देयर इज अ मोटर बेरिंग लूजनेस. सो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या था कि हाई डिस्प्लेसमेंट रीडिंग ने हम लोग को कंफर्म किया. स्पेक्ट्रम भी वही बोल रहा था, 1x, 2x, 3x ऐसा मल्टीपल स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा था. सो इट वाज डिसाइडेड टू रिप्लेस द मोटर. सो अलाइनमेंट हम लोगों ने पहले जैसे मशीन को मेंटेनेंस में लिया, गियर कपलिंग चेक, फाउंड ओके, नो सेकेंडरी डैमेजेस. पंप बेरिंग क्लियरेंस इज चेक, फाउंड ओके. ओके, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया क्योंकि आपका मोटर का बेरिंग का क्लियरेंस डिस्टर्ब था. ओके, सो स्पेयर मोटर रिप्लेस्ड विद अ सर्विस्ड वन. ओके, 34 टन्स मोटर रिप्लेस्ड ऑन दैट पंप एंड सी द रिजल्ट्स. जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 101 गया था वो 3.4 पे वापस आ गया. पंप वाइब्रेशन रिमेन अनचेंज, 38, 34 नॉट एन इशू. 75 इज अलार्म, 100 इज द मैक्स. ओके, सो ये इतना क्रिटिकल पंप है कि ये यदि बंद हो जाता था रनिंग कंडीशन में, डैमेज हो जाता था, तो पर आवर हम लोग को 9,000 रुपीज का लॉस था पर आवर. ओके, तो वो होने नहीं दिया. 1.75 करोड़ का वो ये मोटर था, उसको भी कुछ नहीं होने दिया. ओके, नाउ फैन बेरिंग डैमेज. फैन बेरिंग डैमेज इसका केस स्टडी है. तो ड्यूरिंग रूटीन मॉनिटरिंग ऑनलाइन वाइब्रेशन सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है. तो ऑनलाइन वाइब्रेशन सिस्टम में कंट्रोल रूम इंजीनियर ने देखा कि 4.9 से 6.2 डेविएट हुआ है. हम लोगों ने भी रीडिंग लिया और हम लोगों को भी ये डेविएशन मिला. डेविएशन मिलने के बाद हम लोगों ने स्पेक्ट्रम एनालिसिस चालू कर दिया. ओके, ऑल द प्रोसेस पैरामीटर्स वेर नॉर्मल, सब कुछ ठीक था. ओके, डिसाइड हुआ कि जब भी ये वाइब्रेशन 11 से ऊपर जाएगा, यू शुड स्टॉप द मशीन इमीडिएटली. नाउ हम लोग धीरे धीरे ध्यान रख रहे थे ऑनलाइन वाइब्रेशन पे. 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, और 15 दिन के बाद इसने 11 का लिमिट क्रॉस कर दिया. तो हम लोगों ने इस मशीन को स्टॉप कर दिया. तो ऑफलाइन रीडिंग भी ज्यादा ही मिल रहे थे. इसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ. ओके, स्पेक्ट्रम एनालिसिस में हम लोग को स्पेक्ट्रम क्या मिल रहा था, इस तरह से एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी मिल रहा था 22,230 पे. वो दिखा रहा था कि हम लोग को डिफेक्ट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है बेरिंग का. और वर्टिकल स्पेक्ट्रम में हम लोग को 17,700 पे डिफेक्ट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है. ये सॉफ्टवेयर ही बताता है,
ओके, सॉफ्टवेयर में आप बेरिंग नंबर एग्जैक्ट एंटर करो, आपको इनर रेस आउटर रेस सारा फ्रीक्वेंसीज आपको बता देगा। सो ये दो फ्रीक्वेंसीज कहाँ कोरिलेट कर रहा था, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम एनालिसिस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज बता रहा था, ये हाई फ्रीक्वेंसीज 1x 2x से डिफरेंट था, तो ये बेरिंग का डिफेक्ट्स है। ओके, सो 17,000 और 22,000 पे कौन सा फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा था, तो इनर रेस का और बॉल स्पिन का, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज वहां पे मिल रहा था, दैट्स व्हाई इट वाज अ बेरिंग डिफेक्ट। ये हम लोगों ने 15 दिन पहले ही ढूंढ लिया था, सेफली हम लोगों ने 11 के लिमिट पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद व्हाट हैपेंड, सिंपली हम लोगों ने रोटर को चेंज कर दिया। So during the maintenance, what happened? Condition of motor and fan side coupling checked, okay. Alignment, okay. No secondary damages. लेकिन जो बोला था कि आपका बॉल स्पिन मतलब बॉल का फ्रीक्वेंसी और इनर रेस, तो आपको यहाँ पे ये डैमेजेस मिला। ये हम लोगों ने बाद में किया। ओके, पहले जैसे टायर पंक्चर हो गया, स्पेयर टायर निकाला, लगा दिया, गाड़ी को चालू कर दिया और फिर बाद में आराम से पंचर निकाला अच्छी जगह जाके। हम लोग भी यही करते हैं। दिस इज अ मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट। स्पेयर रोटर को रेडी रखा 15 दिन पहले ही, क्रेन, हाइड्रा, एक्सपर्ट मैन पावर, एवरीथिंग वाज केप्ट रेडी, ऑपरेशनल टीम रेडी, मेंटेनेंस टीम रेडी। और जैसे ही मौका मिला 11 के ऊपर गया, मशीन बंद किया, इमीडिएटली रोटर को स्पेयर से रिप्लेस कर दिया जैसे टायर रिप्लेस करते हैं, और बाद में हम लोग क्वालिटी मेंटेनेंस करते हैं। तो ये हम लोग को डैमेजेस मिला। किसी भी ब्लेड को 46 ब्लेड्स आर देयर, नो ब्लेड डैमेज। रोटर को भी खोला था, रोटर का हब, शाफ्ट, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। फिर से ब्लेड इंस्टॉल कर दिए हम लोगों ने, नया रोटर डाल दिया। ओके, एंड मेड रेडी, अलाइनमेंट डन, फैन टेकन इन सर्विस, सी द रिजल्ट्स। जो 8.1 ऑफलाइन रीडिंग गया था 1.6 पे रिड्यूस हो गया, जो ऑनलाइन रीडिंग 11.2 पे गया था वो 2.9 पे सेटल हो गया, और ये पिछले 4 साल से फैन चल रहा है। सी द स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम में आपको 22,000 और 17,000 पे फ्रीक्वेंसीज मिल रहा था डिफेक्ट का, वो इस स्पेक्ट्रम में नहीं है। मींस दिस कंक्लूड्स द सक्सेस ऑफ योर मेंटेनेंस। Do not show any abnormal frequencies. Just a minute, just a minute. हाँ हॅलो, नाही काय झालं, 5 मिनिटं. So these are the various case studies. Okay, और एक केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूंगा. There are a lot of case studies. Okay, एक मैं टाइम वेव फॉर्म का आपको केस स्टडी बताना चाहूंगा गियर का. ओके, टाइम वेव फॉर्म अ मस्ट रिकॉर्ड फॉर गियर एब्नॉर्मलिटीज. अभी तक हम लोगों ने सारा देखा कि ये एफएफटी स्पेक्ट्रम एनालिसिस. तो एफएफटी स्पेक्ट्रम एनालिसिस में जो है वो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला जो स्पेक्ट्रम है वो हम लोग कंसिडर करते हैं. लेकिन टाइम वेवफॉर्म का क्या यूज है, टाइम वेवफॉर्म क्यों चाहिए? तो सर्टेन केसेस में टाइम वेवफॉर्म का यूज है. क्रिटिकल बेरिंग एंड स्पेक्ट्रम गियर एनालिसिस. तो उसका एक मैं ये केस स्टडी बताना चाहूंगा कि हमारे कोल मिल का एक गियर बॉक्स है, उसमें आवाज आना चालू हो गया. एक आवाज आना चालू हो गया, हम लोगों ने भी सुना. यस, एक्सटर्नली इट वाज, देयर वाज अ साउंड, फिजिकल साउंड वाज देयर. नॉर्मल साउंड से ये साउंड था. तो हम लोगों ने साउंड मेजर कर लिया, अल्ट्रासोनिक से भी ले लिया. साउंड कुछ दिनों बाद बढ़ गया. ओके, मीनवाइल हम लोगों ने एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम भी लिया, वो भी ज्यादा मिल रहा था. लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया. तो स्पेक्ट्रम एनालिसिस में वाइब्रेशन भी हम लोग को ज्यादा मिल रहा था.
Okay, all parameters were having a deviation. So all parameters having a deviation, लेकिन क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली कैसे पिन पॉइंट करें? तो स्पेक्ट्रम एनालिसिस. सो स्पेक्ट्रम एनालिसिस में देखिए यहाँ पे 1x 2x 3x गियर में फ्रीक्वेंसी मिल रहा था. इसको थोड़ा जूम किया हम लोगों ने, 414 आरपीएम का साइड बैंड्स मिल रहा था. तो मुझे पता था क्योंकि टेक्निकल डेटा वी हैव कि ये इंटरमीडिएट गियर का स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इंटरमीडिएट गियर का ही आरपीएम 414 है. 1500 आरपीएम इनपुट का, 414 इंटरमीडिएट का और 120 आउटपुट का. टू कंफर्म दिस टाइम वेव फॉर्म का सहारा लिया. So time waveform spectrum means what? A featured time wave spectrum slot shows how the signal or sensor appears when graphed amplitude over the time. And it is the record of exactly what happened from moment to moment. कि इस मोमेंट में क्या है, अगले मोमेंट में क्या है, अगले मोमेंट में क्या है हो रहा है. इसका ये कि हर एक सेकेंड टू सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, जो कुछ भी है आपको पता चलेगा. अभी 2 है, अभी 3 है, अभी 5 है, अभी 10 है, अभी 2 है, अभी 1 है, वॉट एवर. सो हम लोगों ने भी वो स्पेक्ट्रम कलेक्ट किया एंड वी फाउंड द रिजल्ट्स कि हम लोग को इस तरह से इंपैक्ट्स मिल रहे थे. तो 2 इवेंट को हम लोगों ने जूम किया, टाइम कैलकुलेट किया और 1/t टाइम लिया, उसका फ्रीक्वेंसी निकाला एंड एग्जैक्टली वी आर गेटिंग अ 414 आरपीएम. सो 414 आरपीएम का साइड बैंड एफएफटी में 2 इंपैक्ट के बीच में भी 414 का टाइम डिफरेंस कंफर्म्ड दैट इंटरमीडिएट गियर में कुछ तो गड़बड़ है विदाउट ओपनिंग द गियर बॉक्स. सिमिलरली वी ओपन द गियर बॉक्स, spacer found loose, no bearing damage, no gear damage, no other gear damage, no other bearing damage. अलाइनमेंट हम लोगों ने मतलब डीकपल किया, उस गियर को निकाल दिया, स्पेयर गियर को डाल दिया एंड सी द रिजल्ट्स. जो पेशेंट था वो अच्छा होके घर पे गया. मीन्स व्हाट? द वाइब्रेशन लेवल्स वर हायर साइड, द वाइब्रेशन लेवल्स रिड्यूस्ड. 107 dB नॉइज था, 91 पे नॉर्मल आ गया. ओके, एंड सी द टाइम वेव फॉर्म स्पेक्ट्रम नॉर्मल हो गया, कोई इंपैक्ट, कोई शॉक्स नहीं थे. एफएफटी में भी कोई साइड बैंड 414 आरपीएम का नहीं था. दिस कंक्लूड्स योर मेंटेनेंस सक्सेस. सो टाइम वेव फॉर्म जब भी क्रिटिकल गियरबॉक्स का एनालिसिस होगा उस टाइम पे आपको करना ही करना है और उससे आपको डबल श्योरिटी भी मिलेगी, एग्जैक्ट पिन पॉइंट भी हो जाएगा. So learnings from the case studies is acceleration is a valuable tool. Okay, phase analysis is very, very important. FFT spectrum analysis has to be done. Time waveform is very, very important. Every vibration analysis should use the above techniques for improve the vibration analysis accuracy that helps the maintenance organization to become more proactive and accurate. So summarizing this, the condition monitoring techniques help detecting the fault by providing the deviations well in advance. Early diagnosis results timely action, avoiding the catastrophic failures. जनरेशन लॉस नहीं होने दिया, मेजर रिपेयर नहीं होने दिया, जो भी प्रॉब्लम आया उसी को सॉल्व किया एंड वी कंक्लूडेड दिस. सो थैंक यू फॉर दिस एंड आई होप आई हैव फिनिश्ड इन टाइम. Still anybody wants any specific case study, I will show that. Thank you, sir. Thank you for your very informative, interesting and enthusiastic lecture. Now I will request all the participants, if you have any doubt, you may put your question on the chat box. Sir, can I request one thing? Yes, please. Yeah, there is one problem in our plant, so I have to go. Can I take the question answer in my next session at 2 o'clock? If everybody please. No Okay. issue, sir. Your work is first priority. Yeah. I would like 2 मिनट के लिए मुझे जाना ही है, तो मुझे जाने दीजिए प्लीज थोड़ा सा. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. हाँ. So I will answer each and every question. I will answer each and every question, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए थोड़ा. Sure, sir. Okay. I'll come back.
Sure, sir. I will come back by 2 o'clock. It's okay? Yes, sir. Okay, okay. Thank you, participants. And sorry, I will answer all the questions at 2 o'clock. Thank you. Thank you. So this is how our second lecture completed. So we will be back at 2 o'clock by the same speaker. Thank you. Please let me know what are the questions, please. Yes, sir. Sir, actually, there's a question from Bhavik Patel. Yeah. What is the limit for bearing acceleration and which standard we can follow? Yeah. First of all, acceleration, there is no standard. Okay. बहुत लोग बोलते हैं इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, but with my practical knowledge I will say that you should have a trend for that particular bearing, because I have seen some bearings with a 4 acceleration I have limited, some bearings 2.0 g, and some bearings even 7, and some bearings even 10. So it is not a means irrespective of RPM, loading, or anything else. You should trend it and uh, find out the limit for that. So for general things की यदि बात करनी है तो 4.0 is a limit. उससे आगे आगे यदि बेरिंग जाता है, वाइब्रेशन पे रिफ्लेक्शन नहीं है, देन यू मे थिंक ऑफ चलो मैं 5 जाके अगली बार देखूंगा, पर वाइब्रेशन में रिफ्लेक्शन आता है या फिर नॉइज में रिफ्लेक्शन आता है, टेम्परेचर में रिफ्लेक्शन आता है, then you have to shift from 4 to 3 also. So 4 is a benchmark, average benchmark you can say. Okay, sir. So as of now, we only had this question from the participants, and I encourage you, dear participants, to make the most of this session, because this is really informative, and you can ask your questions in the chat box, and sir, I'll be reading the questions for them. And No problem. And at the end of this second session also, if the first session का कोई question है, doesn't matters for me, I will always answer. thank you. Rhythm थोड़ा टूट गया, but I am sorry for that. Oh, no problem, sir. So if you are still finding the questions, we will start the session. It is okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. You can start with the session, sir. Okay. I'll share the presentation.